یہ زمانہ بہت لمبے ٹائم تک چلا، 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 یہ زمانہ بہت لمبے ٹائم. یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 500, recorded by Mehendi Momin. Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 499. نمدار مفتی صاحب، کمالیہ صاحب، کونسل کے پریزیڈنٹ صاحب، ایسوسی ایشن کے چیئرمین صاحب اور مکھیا نیما کمالیانی کو میں بھول گیا، پہلے کہنا چاہیے تھا. میرے وائزین بھائیوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، میرا ارادہ تھا کہ انگلش کے اندر کنڈکٹ کیا جائے آج کا سبجیکٹ، مگر 10 اوتار کی بعض ایسی باتیں ہیں کہ جن کو انگلش زبان شاید سمجھا نہ سکے. میں اپنی سیدھی سادی آسان بھاشا کے اندر جو کچھ بھی بن سکے گا، یہ بہت ہی زیادہ مشکل اور لمبا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ایک آدھ کلاس میں نہیں لیکن 5-7 سیریز لیکچرز کے اندر اچھی طرح سے یہ چیز بنائی جا سکتی ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنا آسان بن سکے میں اتنی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے. میں ابھی کلام امام مبین کے سیکنڈ پارٹ میں ڈھونڈ رہا تھا مگر جلدی سے مل نہ سکا، اور میری سب کتابیں باکسز کے اندر بند ہیں، مگر نہ میری کتابوں میں ایسا ہے کہ میں اپنی کتابوں کے اندر نشانات رکھتا ہوں اور جو بھی مجھے ریفرنس چاہیے میں آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہوں. مگر میرے کاغذوں کے اندر، پیپرز میں سے اس فرمان کا ایک انگلش ٹرانسلیشن میرے پاس موجود ہے، اور میں اس فرمان مبارک سے آج کا یہ لیکچر یا اسپیچ یا ٹاک یا وائز جو کچھ بھی سمجھو میں شروع کرتا ہوں. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد فرمایا، اور یہ فرمان اسماعیلی ایسوسی ایشن میں بامبے کے اندر ہوا. Explain the philosophy of 10 avatar according to the Islamic principles. Also explain the Nur of Allah before the creation, which is present since then. During the time of Islam Shah, Pir Sadruddin had explained to you the fundamentals of religion. Explain according to that to the Jamaat. امام فرمایا مشنریوں کو کہ 10 اوتار کی جو فلسفی ہے اس کو تم اسلامک پرنسپلز کے حساب سے جماعت کو سمجھاؤ، اور یہ بھی سمجھاؤ کہ سرشٹی کی رچنا سے پہلے خدا تعالیٰ کا جو نور تھا اس کی بابت بھی جماعت کو سمجھاؤ، اور وہ نور اس زمانے سے یعنی کریشن کے بھی پہلے سے اب موجود ہے، یعنی حضر امام. ماں باپ فرمایا کہ پیر صدر الدین نے
مولانا امام اسلام شاہ کے زمانے کے اندر تم کو اسماعیلی مذہب کے جو سدھانت ہیں وہ تمہیں بتائے، وہ سدھانت مشنریوں کو فرمایا کہ جماعت کو بتاؤ۔ امام کا یہ اشارہ کہ 10 اوتار کو تم اسلامک پرنسپل سے سمجھاؤ، ذرا انسان کو سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی بہنوں کا یہ خیال ہے کہ یہ 10 اوتار کی بات تو ہندوؤں کی بات ہے، بھلا اس کے ساتھ اسلام کس طرح سے لگ سکتا ہے، اور وہ بھی اسلام کے پرنسپلز۔ اچھا چلو ہم اس کے اوپر وچار کریں۔ یہ وائزن کی کنونشن ہے، اس کے لیے آج کا میرا جو سٹائل ہے بولنے کا وہ وائز کی طرح کا نہیں ہے۔ میں وائزین کو ایکچولی کہہ رہا ہوں اور جماعت کو نہیں کہہ رہا، مگر جماعت سن رہی ہے۔ میرا ایڈریس جو ہے وہ وائزین کی طرف ہے اور ان اسٹوڈنٹس کی طرف ہے کہ جو اسماعیلی مذہب کی ٹریننگ لے رہے ہیں۔ شاید فیوچر کے اندر میرا یہ لیکچر کام آ سکے۔ امام کے اس فرمان کو ہم تھوڑے ڈسکشن میں لے کے آئیں۔ جیسا میں نے عرض کی کہ 10 اوتار کو اسلامک پرنسپلز کے حساب سے بتاؤ، تو ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اسلام کے پرنسپلز کیا ہیں۔ مگر اسلام کے پرنسپلز میں بیان کروں اس کے پہلے، کیونکہ 10 اوتار کی بات ہے تو میں پہلے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ 10 تو ٹھیک 10، مگر اوتار کا مطلب کیا ہے، اوتار کا ایکسپلینیشن کیا ہے۔ اوتار جو ہے اس کی روٹ ہے تارن ہار، اور اس میں سے نکلا اوتار، اتارنا والا، جیسے اودھار، اودھار ناؤن کے اندر بھی آتا ہے اور ورب میں بھی آتا ہے۔ اودھار کہتے ہیں کسی شخص کو مشکل میں سے نکال کے منزل پہ پہنچانا، اور اوتار اس کو کہتے ہیں کہ جو اس دنیا کی گناہوں میں سے نکال کے اس کو مکتی دلائے، اس کا نام اوتار ہے۔ ہم پھر اس کو اوتار کہہ دیتے ہیں۔ اوتار کا ہندوؤں کے عام پبلک کے اندر یہ امیج ہے کہ خدا بدن کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنی اس محبت اور حب میں، اپنے پیار کے اندر اس ڈیٹی کو کہ جو خدا تعالی کی طرف سے ہندوؤں کی نظر میں، ہندوستانیوں کی نظر میں خدا کی ساکشات مورتی ہے۔ ساکشات مورتی کا مطلب آنکھ سے دکھ سکے، ہاتھ سے چھوئی جا سکے، کانوں سے اس کی آواز سنی جا سکے، اور ہم اس کو کہیں تو وہ سن سکے۔ اوتار کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ جس کو کہتے ہیں انسان کی کنڈیشن۔ ایک آدمی کام کاج کر کے کپڑے اس کے خراب ہو گئے، بدن میں سے پسینہ نکلا، بال بکھر گئے، تو ایڈیومیٹک لینگویج کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں تم اپنا اوتار تو دیکھو۔ یہاں اس اوتار کا مطلب خدا کا اوتار نہیں، اوتار یعنی حالت کو بھی اوتار کہتے ہیں، کنڈیشن کو اوتار کہتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس 10 اوتار کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ 10 اوتار ہیں کہ جو خدا تعالی کے نورانی مظہر تھے، یعنی مینیفیسٹ تھے۔ تو اس کے لیے اب ہم یہ سوچیں کہ اسلام کے پرنسپلز کیا ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا پرنسپل جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کہتے ہیں یونٹی آف اللہ، یعنی ایک خدا ہے۔ خدا 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، خدا ایک ہے۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا پرنسپل ہے۔ دوسرا پرنسپل یہ ہے رسالت کا۔ رسالت کا پرنسپل یہ ہے کہ اللہ پاک
सुबहानहू व तआलाहू, न जिसकी कोई शक्ल है, न जिसका कोई बदन है, न उसने किसी को अपने बदन में से जन्म दिया, न किसी ने उसको अपने बदन में से जन्म दिया, न किसी ने उसको बनाया, न किसी ने उसको अच्छी तरह से जाना। उसकी एक ही रहने की कोई जगह नहीं और वो हर जगह मौजूद है। उसने सबको बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया। खुदा की इन तमाम सिफतों को अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्माइली अच्छी तरह जानते हैं। यह खुदा ताला के तौहीद का जो पहले में पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है इस्लाम का, तो वो ये है। और हम इस्माइली अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के इस फंडामेंटल और फर्स्ट प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह मानते हैं कि खुदा एक है। हमारे गिनान भरे हुए हैं, हमारे पीरों के और हमारे फरमान जो हैं इमामों के, वो भी हमारे भरे हुए हैं। और हर एक इस्माइली बच्चा इस बात को जानता है। किसी को भी पूछ लो कि भाई खुदा कितने, तो कहेगा खुदा एक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में से एक भी ऐसा नहीं कि जो दो खुदाओं को मानता होवे या एक से ज्यादा खुदा मानता होवे। खुदा एक ही है, वहदहू ला शरीक लह, उसका कोई भागीदार नहीं, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। न उसकी बीवी है, न उसके बच्चे हैं, न उसका कोई भाई है, न उसका कोई चाचा मामा है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं, सब उसने बनाए हैं। ये खुदा ताला की जो सिफतें हैं, ये सिफतें किसकी हो सकती हैं? अगर किसी का बदन होवे तो वो सिफतों में आ सके, लेकिन अल्लाह के बदन ही नहीं, तो यह जाहिर हुआ कि ये तमाम की तमाम सिफतें जो हैं वो नूर की सिफतें हैं। और खुद खुदा ताला ने इस बात के लिए कहा है कि मैं नूर ही नूर हूं। तो तौहीद का मतलब अगर समझना है तो हमें ये जानना चाहिए कि खुदा है वो नूर है, और नूर एक ही है, उस जैसा कोई नहीं। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है रिसालत का, यानी खुदा ताला ने क्योंकि वो नूर है, उसने सृष्टि बनाई, उसने इंसान मखलूकात बनाई, जानवर भी बनाए, दरख्त, वनस्पति, वेजिटेशन, ये सब चीजें बनाई, पहाड़ बनाए। जरा घूम के देखो तो सही, दुनिया का ज्योग्राफी देखो तो आपको इतना मजा आएगा पढ़ने के अंदर। क्या कमाल किया है खुदा ताला ने। इतनी बड़ी, लाखों नहीं करोड़ों अब्जों टन जितनी वजनदार ये पृथ्वी, करोड़ों टन इसका वजन है। और कोई डोरा, कोई धागा, कोई चेन, कोई तार, कोई चीज ने इसको बांधा हुआ नहीं। और ये पृथ्वी, ये हमारा ग्लोब, ये अर्थ इतने बड़े वजन के साथ कि बिलियंस ऑफ फैथोम पानी इसके अंदर समुंदर में बैठा है। खाली हिमालय पर्वत को वजन करना चाहो तो हम उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ऐसी वजनदार हमारी जमीन 72,000 माइल, 72,000 माइल्स एक कलाक में स्पेस के अंदर भाग रही है। स्पेस में भाग रही है एक कलाक में 72,000 माइल्स, मोर देन 1100-1200 माइल्स पर मिनट। इतनी बड़ी, इतनी वजनदार पृथ्वी, और ये इस जोर से भाग रही है। और साथ साथ अपने ऊपर नीचे जो नॉर्थ और साउथ पोल का जो एक्सिस है ना, इसके ऊपर घूम रही है। इसकी स्पीड तकरीबन 1000 एक कलाक में है, 1000 माइल एक कलाक में। हम लोग टोरंटो में बैठे हुए हैं, लेकिन 1000 माइल की स्पीड से हम भाग रहे हैं, पता लगता है। और स्पेस के अंदर हम लोग एक सेकंड में 1100 माइल की स्पीड से जा रहे हैं, पता लगता है। पहाड़, चरिंदे परिंदे, इंसान, पानी, जंगल, बेहिसाब चीजें भाग रही हैं और करोड़ों बरसों से भाग रही है। करोड़ों बरसों से किसने बनाई? ये ऐसी गजबनाक, ऐसी अच्छी पृथ्वी किसने बनाई? उस खुदावंद करीम ने बनाई, जो खालिक अकबर है, बेस्ट ऑफ द क्रिएटर्स है। उसने बनाई।
सिर्फ एक जमीन ही ले लो, बाकी की चीजें छोड़ दो, पृथ्वी की ही बात कर लो तो खुदा की बड़ाई का पता लग जाता है। ठहरो, मैं आपको कुछ और कहूं। हमारी जमीन अपनी एक्सिस के ऊपर घूम रही है 1000 से ज्यादा माइल एक कलाक में, इसमें से 24 घंटे का दिन रात बनता है। और ये जमीन तकरीबन 2 लाख माइल 3 कलाक में, यानी 70-72 हजार माइल की स्पीड से स्पेस में भाग रही है। कहां भाग रही है? सूरज के इर्द गिर्द भाग रही है। और ये सूरज एक जगह खड़ा नहीं, सूरज भी भाग रहा है। और सूरज की स्पीड हमारी पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। और सूरज हमारी पृथ्वी से 10 मिलियन टाइम्स बड़ा है। 1 करोड़ अर्थ, 1 करोड़ जमीनें इकट्ठी करो तो एक सूरज बने, इतना बड़ा है। और सूरज हमारी पृथ्वी से 9 करोड़ 96 लाख माइल दूर है। और फिर ये सूरज अकेला नहीं, इसके 9 बच्चे हैं। ये तमाम 9 प्लैनेट्स को, अपने बच्चों को लेके, सब बच्चे इसके इर्द गिर्द भागते हैं और सूरज अपने तमाम बच्चों को लेकर स्पेस में भाग रहा है। कहां भाग रहा है? गैलेक्सी के आजू बाजू में। 10 गुना ज्यादा सूरज की फैमिली की स्पीड है, अर्थ से भी 10 गुना ज्यादा। यानी आप ऐसा ख्याल करो कि सारी सोलर फैमिली लगभग 10-12 हजार माइल 1 मिनट की स्पीड में भाग रहे हैं। और फिर ये सारा सोलर सिस्टम जो गैलेक्सी के इर्द गिर्द चल रहा है, ऐसे 32 सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी में है और वो सब इसी तरह से भाग रहे हैं। और ये गैलेक्सी, ये सारी 32 सोलर सिस्टम की फैमिलीज को लेके मिल्की वे के इर्द गिर्द भाग रहे हैं। यानी कोई चीज खुदा ताला ने स्टेबल नहीं बनाई, हर चीज भाग रही है। साइंटिस्ट को पता नहीं है अभी तक कि हमारी पृथ्वी की 7 मूवमेंट्स हैं, लेकिन हमारी निकलंकी गीता में हमको बताया गया है, 500 वर्ष पहले हमको बताया गया कि जमीन की 7 मूवमेंट्स हैं। इधर कोई फिजिक्स पढ़ने वाले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बैठे होंगे, जाओ ढूंढो कि हमारी पृथ्वी की तुम्हारी किताबों में से कितनी मूवमेंट्स निकलती हैं। 7 की 7 मूवमेंट्स में आज बयान नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमको कहा गया कि हमारी पृथ्वी की 7 मूवमेंट्स हैं। लेकिन एक और मूवमेंट उसकी बता दूं, हमारी जो पृथ्वी है, ये मैं सब क्यों कह रहा हूं, हमारे गिनानों का ये भाग है। ये जो फिजिक्स का भाग है, ये हमारे गिनानों का भाग है। खुदा ने क्या क्रिएट किया और कैसे क्रिएट किया, ये खुदा ताला की बड़ाई की एक बात है। देखो, पृथ्वी की एक और मूवमेंट है, और वो ये है कि हमारी पृथ्वी एक गोले की तरह है, लेकिन एब्सोल्युटली फुटबॉल की तरह गोल नहीं, जरा ऊपर और नीचे फ्लैट है, जिसको हमारे पीरों ने ईंदानु आकार कहा। हमारे पीरों ने गिनानों के अंदर बहुत आला दर्जे की टर्मिनोलॉजी यूज की हुई है, और हैरान होता है कि पीरों को ये सब पता कैसे लगा रूहानी हिसाब से। तो हमारी जो जमीन है वो ऊपर और नीचे ऐसा बैठी हुई है जरा, इसको पीरों ने कहा कि ईंडा को आकार है, इंडे की शक्ल में है, मगर ये बिल्कुल सीधी नहीं। नॉर्थ पोल ऐसा जरा टिल्ट हुआ है, 62.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थ पोल टिल्ट है। एग्जैक्टली नॉर्थ पोल और हमारा जो इक्वेटर है वो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाता, राइट एंगल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी के ऊपर राइट एंगल जरूर है, लेकिन ऊपर के जो पोल है नॉर्थ पोल, वो 62.5 डिग्री के ऊपर टिल्ट है। और ये टिल्ट यूं ही नहीं, बल्कि ये ऐसा घूम रही है जिसको हम कहते हैं वॉबलिंग कर रही है। गाड़ी का एक पायरा, कार का एक व्हील, आगे का या पीछे का, अगर उसका जो बैलेंस बराबर नहीं, व्हील बैलेंसिंग बराबर नहीं, तो वो व्हील जब ही चलता है तो ऐसा ऐसा चलता है, जिसको कहते हैं हम वो वॉबल करता है इंग्लिश में। ये हमारी जो जमीन है वो सूरज के गिर्द स्पेस में भाग रही है 2 लाख माइल 3 घंटे के अंदर, मगर वॉबल कर रही है, हिल रही है। और ये जो वॉबलिंग की जो स्पीड है,
اس کو 52,000 برس لگتے ہیں. اس کے جو وابلنگ کا جو اینگل ہے اس کو پورا کرنے کے لیے 52,000 ایئرز لگتے ہیں. ایک اور اس کی پرتھوی کی سپیڈ ہے کہ جو نارتھ پول ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، ساؤتھ پول اوپر جا رہا ہے، اور یہ اس طرح سے ایسا جو چکر لے کے لگے گا اوپر جائے گا تو اس کو کروڑوں برس لگیں گے. یہ سب چیزیں ہم کو ہمارے گنانوں میں سے ملتی ہیں. تو یہ جو زمین خدا تعالیٰ نے بنائی، کریٹ کی، پھر اس کے اندر جو کچھ بھی کریٹ کیا، پرٹیکولرلی لائف کریٹ کی، تو اس لائف کو کریٹ کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کا دھیان رکھنے کے لیے اس کے اندر سے ہی اپنے نور کو کھڑا کیا، اور اس کو ہم کہتے ہیں گرو برہما کہتے ہیں یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کہتے ہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکلہم من نوری، میں خدا کے نور میں سے ہوں اور ہر چیز کریشن میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے نور میں سے بنی ہے. تمام سرشٹی، ایوری کریٹڈ تھنگ از فرام نور آف محمد. تو دوسری سینس میں جو محمد کا جو نور ہے وہ کریٹر ہے، محمد کا جو نور ہے وہ کریٹر ہے. یعنی خدا تعالیٰ کی نورانی حالت جس نے کریٹ کیا ہے ہم اسی کو محمد کہتے ہیں. اور خود رسول اکرم فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ تمام نبیوں کے اندر میرا ہی نور تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر نبی محمد ہی کا نور ہے. تو علی کہاں ہے وہ بات میں بیان کرتا ہوں آپ کو. میں اسلام کے فنڈامنٹل پرنسپلز بیان کر رہا ہوں 10 اوتار سمجھنے کے لیے، کہ جس کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرمایا explain the philosophy of 10 اوتار according to the Islamic principles. تو پہلے ہمیں اسلام کے پرنسپل سمجھنے چاہیے. جو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ خدا نور ہے، اس کی کوئی باڈی نہیں، مگر اس نے دنیا کے اندر جب مخلوقات پیدا کی تو اس مخلوقات کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے اس نورانی مظہر کو، کہ جس کے نور میں سے اس نے پیدا کیا، جیسے کہ ماں کے وomb میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے مگر وہ بچہ ماں کا نہیں باپ کا ہے. بھلے پیدا کرنے والی ماں ہے، ماں نے اس کو بڑا کیا، ماں نے اس کو فیڈ کیا، ماں نے اس کو جوان بنایا، لیکن وہ خدا کا ہے. یعنی میں رسول اکرم کو ماں کی طرح کہہ رہا ہوں. وہ خالق ہے، وہ رب ہے، اور وہ اس کو پار اتارنے والا ہے. کون پار اتارے گا؟ محمد. محمد پار اتارے گا، محمد شفاعت کرے گا، محمد ہمارے گناہ معاف کرائے گا. محمد خدا کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ میری امت ہے، میرے لیے رحم کر دے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر ہے کہ قیامت کے دن میں محمد کو کہوں گا سر اونچا کرو، اے میرے حبیب مانگو کیا کہتے ہو. تو رسول اکرم اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگیں گے. تو توحید اور رسالت یہ دو زبردست پرنسپل ہیں دین اسلام کے، اور یہی دو پرنسپلز ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر ہیں. میں نے اپنی بعض وعظوں کے اندر سمجھایا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو نام ہیں یعنی اس کی جو صفتیں ہیں، ان صفات کو جس کو انگلش میں ہم ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، اس کی دو کیٹیگریز ہیں. اور یہ چیز عالم مسلمان مانتے ہیں. ایک جلالی صفت ہے، ایک جمالی صفت ہے. جلالی صفت جو ہے یہ سب چیزیں آپ کو 10 اوتار سمجھنے میں کام آئیں گی، اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. جلالی صفتیں جو ہیں، جلالی گرمی کو کہتے ہیں، جلال تیج کو کہتے ہیں، جلال وارمتھ کو کہتے ہیں، جلال اتھارٹی کو کہتے ہیں. تو یہ تمام صفتیں جو خدا کی جلالی صفتیں ہیں، جس میں اتھارٹی ہے، جس میں تیج ہے، طاقت ہے، پاور ہے، زبردستی ہے، جبار ہے، قہار ہے، یہ سب اس کی جلالی صفتیں ہیں.
वो बादशाह है, सुल्तान है। तो ये उसकी जलाली सिफतें हैं। जमाली सिफतें जो हैं वो नरम हैं, सहन करने वाली हैं, फायदा पहुंचाने वाली हैं, बख्शिशें देने वाली हैं। जलाली सिफतों के सामने जमाली सिफतें नरम हैं और नीची हैं। जैसा कि रहीम, रहीम कहते हैं दया करने वाला। रहमान, रहमान कहते हैं मांगे बगैर बख्श देवे, उसके अंदर भी दया और रहम है। वहाब, बख्श देने वाला। रब, पोषण देने वाला, सस्टेन करने वाला, मेंटेन करने वाला। ये तमाम सिफतें जो हैं ये जमाली सिफतें हैं। जमाली सिफतें जो हैं वो माँ की तरह हैं। जलाली सिफतें हैं वो बाप की तरह हैं, एक बादशाह की तरह हैं। और जमाली सिफतें एक वजीर की तरह हैं। ये सिफतें समझ लेने के बाद हमको ये आसानी से पता लग जाता है कि हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा अरसलनाका, हमने तुमको भेजा, इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने नहीं भेजा किसी और तरीके से बच। यानी उसका मतलब यह है कि ऐ नबी, आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। रहमत किसकी है? रहमत खुदा की। तो खुदा की रहमत पर्सोनिफाई हुई मोहम्मद के बदन में। अब देखो, खुदा ताला की रहमत ने एक अवतार लिया और वो अवतार मोहम्मद का है। खुदा ताला ने अपनी रहमत को इंसान की शक्ल में बनाया और उसका नाम रखा मोहम्मद। ये उसकी जमाली सिफत थी। इसी तरह से जब उसने क्रिएशन चलाई तो महज जमाली सिफत ही की जरूरत नहीं, क्योंकि दुनिया के अंदर, उसकी मखलूकात के अंदर शैतान भी है, उसकी मखलूकात के अंदर बदमाश भी हैं, लुच्चे भी हैं। तो उनको जमाली सिफत कंट्रोल नहीं कर सकती। तो उसके लिए अपनी जलाली सिफत को जाहिर किया और इस जलाली सिफत का नाम ही हमने अली रखा, इमाम रखा। और ये जो इमाम है ये अल्लाह की जलाली सिफतों के मजहर हैं। मजहर कहते हैं अवतार को, मजहर कहते हैं मैनिफेस्टेशन को, मजहर कहते हैं पर्सोनिफिकेशन को। तो जिस तरह से खुदा की रहमत, उसकी पर्सोनिफिकेशन मोहम्मद है, तो खुदा ताला की जो ताकत और कुव्वत है, खुदा ताला की जो अथॉरिटी और पावर है, वो पर्सोनिफाई हुई अली की शक्ल में है। जब आप इस्माइली मजहब के लिए जानना पहचानना चाहो तो दीनदारों, आपको शिया सोर्सेज पढ़नी चाहिए। सुन्नियों की किताबों के अंदर से आपको अपना मजहब नहीं मिलेगा। एक हदीस है और वो हदीस हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मंसूब है और ये शिया सोर्स में से है और इसको 2-3 इमामों ने बयान फरमाया है। इमाम मोहम्मद बाकिर ने भी फरमाया है, इमाम जाफर सादिक ने भी फरमाया है कि हजरत रसूल अकरम जब मेराज पे गए और हजरत जिब्रील अकेले एक खास जगह के ऊपर आके अटक गए, कहा या नबी मैं और इसके आगे नहीं जा सकता। तो जब हजरत रसूल अकरम आगे गए तो देखा कि हजरत अली अलैहिस्सलाम वहां बैठे हुए हैं। तो क्या सवाल है, तो क्या मोहम्मद से पहले अर्श पे अली था? हाँ हाँ, इसी के लिए तो मेराज हुई, मोहम्मद के जानने के लिए नहीं, लोगों के जानने के लिए। दुनिया भर के 100 करोड़ मुसलमान हर बरस लैलतुल मेराज मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? खुशियां करते हैं कि रसूलुल्लाह को, हमारे नबी को मेराज हुई। लिए दुनिया भर के 100 करोड़ मुसलमान हर बरस लैलतुल मेराज मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? खुशियां करते हैं कि रसूलुल्लाह को, हमारे नबी को मेराज हुई। मगर उसके अंदर का भेद न समझे। खुशियां मना लेते हैं मगर हम भेद न समझे।
वो भेद ये है کہ خدا کی جو جلالی صفت تھی، جو ایک پدرانہ پیٹرنل صفت ہے، باپ جیسی صفت ہے، جو اتھارٹیٹیو ہے اور پاورفل ہے، حساب کتاب لینے والی ہے اور سزا دینے والی ہے، یہ صفت امام کی ہے. انہی چیزوں کو، اسی مینیفیسٹیشن کو ہمارے گنانوں کے اندر اوتار کہا گیا. اور جو جمالی صفتیں ہیں اس کو ہم نے گرو برہما یا نبی محمد ایک ہی ہیں، ان کو ہم نے پیر کے طور پہ لے لیا. یعنی شاہ اور پیر یہ اسلامی پرنسپل ہے. یہ سمجھنے کے بعد قرآن پاک میں سے چند آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. میں ابھی تک 10 اوتار کو چھیڑا نہیں، لیکن آپ کو میں تیار کر رہا ہوں. دیکھو، خدا تعالیٰ نے، ہمارے گنان بھی کہتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں آج سائنس کے تھرو سے کہ خدا نے یہ کریشن کیسے پیدا کی. پھر صدر دین فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ میں کریٹ کروں. کریشن بنانے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ خدا تعالیٰ نے اپنے منہ میں سے تھوک نکالی، فین نکالی، جس کو ہم جھاگ کہتے ہیں، لیتھر کہتے ہیں. صابن لے کے آپ اس کو پانی کے ساتھ ایسا رگڑو تو اس میں سے لیتھر نکلتی ہے، فین نکلتی ہے. کیسی مشکل چیز کو کیسی آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے پیر نے یہ رستہ نکالا کہ سری صاحب جیے مکھ ماتھی فین نو گوٹو کاڈیو. خدا کے منہ میں کوئی تھوک تھی، سلیوا تھا، لیکن ایلیگری یہ ہے کہ اس نے حکم دیا کن اور وہ ہو گئی فیا کن. مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا نے جب حکم دیا کہ ہو تو کیا ہوا کہ فین کا ایک گوٹا نکلا. جب یہ حکم کیا تو اندر سے ہوا نکلتی ہے. یہ جو ہوا ہے یہ گیس ہے. تو خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے گیس بنائی اور وہ گیس ریوالو ہوتی رہی. ریوالو ہوتے 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 سولیڈیفائڈ ہوئی، یعنی تھک ہو گئی. جب وہ تھک ہو گئی تو وہ گوٹا بن گیا. گوٹا مینس بال بن گیا. اور یہ جو بال تھا، فرمایا پھر صدر دین نے کہ تیماسی کینو اینڈانو آکار، اور اس میں سے اس فین کے گوٹے میں سے اوول شیپ کا، انڈے کی شکل کا آکار بنایا. یہ یونیورس بنا. آپ یونیورس میں دیکھو گے، فزکس میں آپ دیکھو اور پڑھو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جتنی بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں وہ تمام کی تمام 100% راؤنڈ نہیں ہیں. گھومنے کی وجہ سے اوپر سے پھس گئی ہیں اور ان کی شکل انڈے کی طرح اوول ہو گئی ہے. یہ ہے گنانوں میں 500 برس پہلے. اب یہ جو آکار بنایا، تو جو بھی، میں صرف ابھی یہ لے لوں، اپنی ارتھ کی بات کرتا ہوں کہ ہماری ارتھ جب سورج میں سے نکل آئی تو یہ تو ایک آگ کا گولا تھی نا، اور آگ گیس ہے، گیس ہی گیس ہے. تو یہ جو گیس تھی ریوالو کرتی رہی دھرتی، اس کی وجہ سے آہستہ 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 اوپر سے ٹھنڈی ہوتی گئی. ٹھنڈی ہوتے 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 اس کے اندر سے پتھر وغیرہ بنے، اس میں سے پہاڑ بنے، کھڈے بن گئے. آج بھی ہماری زمین کے اندر بے حساب آگ ہے. ہماری زمین ادھر سے ادھر ایک سوا لے کے ایسا ڈال دو، ادھر سے ادھر کر کے، تو آپ کو معلوم ہے 8000 مائل ہے. اکویٹر ٹو اکویٹر اندر سے ایک سوئی ڈال دے میں بڑی لمبی، تو 8000 مائل ہے. یہ 8000 مائل میں 2000 مائل ادھر، 2000 مائل ادھر. یہ زمین کا کرسٹ ہے اوپر، وہ کمتی ہے، چند مائل کا ہے، لیکن اندر جو 4000 مائل ہے، 4000 مائل ڈائمیٹر، وہ آگ ہی آگ ہے. آج بھی ہماری زمین کے اندر آگ ہی آگ ہے. اور یہ آگ تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد والکینو کی شکل میں
हमको नजर आती है। तो आज भी करोड़ों अब्जों बरस हो जाने पर हमारी जमीन 100% ठंडी नहीं हो सकी। तो जब ये ऊपर क्रस्ट बन गया, ऊपर ठंडी हो गई, तो ठंडा होने की वजह से खुदा ताला की जो लॉज थे उसके हिसाब से जो गैस थी उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाने से पानी बन गया। कुरान शरीफ की चंद आयतें हमारे सामने हैं। तो खुदा फरमाया वजालना, हमने बनाया, मिनल माय, पानी के अंदर से, कुल्ला शैइन हय्यिन, हमने जितनी भी लाइफ है, कुल्ला शैइन हय्यिन, हर वो चीज के जो जीवती है जिसमें लाइफ है उसको हमने पानी में से बनाया। 1400 वर्ष पहले दुनिया के किसी साइंटिस्ट को पता नहीं था कि हर चीज पानी से बनी है। पानी जो है वो इटसेल्फ केमिकल है और लाइफ की सारी स्टोरी केमिकल्स के ऊपर है। खुदा ताला का ये फरमान कि जो सूरतुल अंबिया के अंदर है कि हमने हर शय को, सूरतुल अंबिया की 31वीं आयत है कि हमने हर शय को पानी से बनाया। वजालना मिनल माय कुल्ला शैइन हय्यिन, हर चीज को हमने पानी से बनाया। और फिर एक और चीज कहा, लतर तब्बेना तबकन मन तबके, और हमने, बिल्कुल मान लो इस बात को सच समझ के कि तुमको हमने स्टेज बाय स्टेज बनाया। लतर तब्बेना तबकन मन तबक, that you shall surely pass on from one stage to another stage. सूरतुल अनशकाक के जो 84वां सूरा है उसकी 19वीं आयत है कि हमने तुमको तबकन ब तबकन बनाया और तुमको तबकन ब तबकन बनना पड़ेगा। फ्यूचर टेंस है। पानी में से हर जिंदा चीज बनाई और फिर फ्यूचर टेंस में है कि तुमको तबकन बाद तबकन, स्टेज बाय स्टेज गुजरना पड़ेगा। एक और आयत बहुत समझने जैसी है, सब्बे इस्म रब्बिकल आला, अपने आला दर्जे के पालने वाले की वखान करो, सिफत करो। अल्लज़ी खलका फसव्वा, जिसने तुम लोगों को पैदा किया और परफेक्ट बनाया। वल्लज़ी कद्दरा फहदा, और वो डिजाइन बनाता है और गाइड करता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसा है, ग्लोरीफाई द नेम ऑफ दाई लॉर्ड द मोस्ट हाई who creates and makes it perfect and who designs and guides। सब सिफतें इसमें आ गई। यह है सूरतुल आला जो 87वां सूरा है कुरान पाक में, इसकी पहली 3 आयतें हैं। इन तमाम चीजों को सामने रख के पता लगता है कि खुदा ताला ने ये जो क्रिएशन बनाई अपने हुक्म से बनाई, और खुदा ताला नूर है, इसलिए हम इस्माइली खास तौर पे, क्योंकि हम तरीकती हैं और बातूनी हैं, और जितने भी सूफी हैं वो भी इस चीज को कबूल करते हैं कि खुदा ताला नूर है, नूर मुतलिक है। मगर इसके साथ साथ उसके साथ लगी हुई जितनी भी चीजें हैं, यानी खुदा ताला की जितने नाम हैं, खुदा की जितनी सिफतें हैं, खुदा के जितने काम हैं, खुदा के जितने हुक्म हैं, वो सब के सब नूर हैं। वो सब के सब नूर हैं। खुदा ताला का जो हुक्म है वो भी नूर है। कुरान शरीफ के अंदर खुदा ने अपनी हिदायत को भी नूर कहा। तो खुदा ताला का जो हुक्म है वही तो हिदायत है ना। उसके हुक्म से जो चीज बनी वो नूर में से बनी।
تو خدا نے جب پانی بنایا تو پانی میں سے لائف شروع ہوئی. وہ کیا ہے؟ امیبا ہے. ایک سنگل سپرمٹوزا، ایک سنگل سیل بنا. آپ کو بنانا ہے یہ سیل؟ ایک گنی کا ٹکڑا لے لو، اس کو کوئی ایسی جگہ کے اوپر اپنے بیک یارڈ گارڈن میں رکھ دو، گندا کر کے مڈ کے اندر ڈال کے، کہ جہاں ڈائریکٹ دھوپ بھی لگتی ہوئے، تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اوپر پھینکتے رہو. اور کبھی چھوٹا بچہ گھر میں ہے تو کہو اس کے اوپر تھوڑا سا پیشاب بھی کر دو. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کرو، بچے کو کہو پیشاب کر دے. 5-6 ویک کے بعد اس کے اندر بیکٹیریاز بڑے ہو جائیں گے. بیکٹیریاز تو ہیں، پانی میں بھی بیکٹیریا ہے. پیشاب کرنے سے ان بیکٹیریاز کو کیمیکل زیادہ مل گئے. کبھی پیشاب نہ بھی کرے بچہ تو بھی وہ کیمیکلز آہستہ تھوڑا زیادہ وقت لیں گے، لیکن اس میں سے جو بیکٹیریاز ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے اور آپ کو آنکھ سے دکھیں گے. تو خدا تعالیٰ نے اس طرح سے پانی سے امیبا، ایک سنگل سیل پیدا کیا. اور یہ جو سنگل سیل تھا جو مٹی اور پانی سے بنا، اسی کو عربی زبان میں آدم کہتے ہیں. آدم کا جو مطلب ہے، آدم کی جو روٹ ہے وہ یہ ہے، مٹی سے بنا ہوا. ہم جس کو کہتے ہیں مٹی سے بنا ہوا، وہ نہ صرف انسان، کوئی بھی جو چیز جیو دار ہے، لائف والی ہے، مٹی سے بنی ہے، وہ آدم ہے. اگرچہ ہم اپنے آپ کو آدمی سمجھتے ہیں، لیکن آدمی اگر لفظ آدم لے لینے اور اس کی روٹ کا خیال کر لینے، اوریجنیلٹی کا، تو جانور میں سے وہ جانور جو سب سے پہلے پیدا ہوا وہ آدم تھا. تو وہ دنیا کے اندر جو پہلا سیل ہوا وہ آدم تھا. اس ایک سیل میں سے 2 ہوئے، 2 میں سے 4 ہوئے، 4 میں سے 8 ہوئے، اور بھی سیلز پیدا ہوئے. خدا تعالیٰ جو ہے وہ الباری ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا ہے. اس کی کریشن ہر وقت جاری ہے اور وہ کبھی بند نہیں ہوگی. تو اس طرح سے اس زمین کے اوپر لائف شروع ہوئی. خدا تعالیٰ نے اپنی کریشن پیدا کرنے سے پہلے، اس نے، ہم پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، قرآن شریف کے اندر اور اسلام کے اندر، ہر آدمی یہ بات کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے شیطان بنایا. شیطان پرسونیفائڈ نہیں ہے. جس طرح سے امام اور نبی ظاہر کے اندر ایک بدن میں آئے، خدا تعالیٰ کا دور اپنے ساتھ لے کے آئے، وہ نورانی صفتوں والے تھے. اس طرح سے شیطان مینیفیسٹ نہ ہوا، مگر شیطانی فورس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایکچولی کسی ایک ویکتی، کسی ایک انڈیویجول کا نام شیطان نہیں ہے، مگر شیطان کی فورس ہے. اس فورس کو خدا کی اپوزٹ فورس کہتے ہیں. اگر خدا کی فورس کو ہم پازیٹیو کہتے ہیں تو شیطان کی جو فورس ہے وہ نیگیٹو ہے. اور خدا تعالیٰ کو کریشن کے لیے یہ ضرورت پڑی. اگر وہ چاہتا تو اس کی ضرورت نہ بھی ہوتی، لیکن اس نے اس طرح سے بنایا کہ 2 فورسز ہیں، ایک پازیٹیو ہے، ایک نیگیٹو ہے. ان 2 فورسز کی وجہ سے اس نے بیلنس رکھا. اسی کو ہم گریویٹی کہتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ اتنی بڑی وزندار زمین یہ اسپیس میں اتنی زور سے بھاگ رہی ہے، کوئی اس کو چین نہیں، کوئی وائر نہیں، کوئی پلر نہیں، کچھ نہیں، یہ بھاگ رہی ہے. اور اس گریویٹی کو ہمارے پیروں نے کبھی وہ زمانے کے اندر 500-700 برس پہلے جو ابھن بدھو قسم کے، یعنی بیچارے بھولے بھالے مگر ابھن لوگ تھے، ان کو جو کہتے کہ گریویٹی یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک قسم کی پولنگ پاور ہے یا میگنیٹک پاور ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ سکتے تھے؟ تو ہمارے پیروں نے گریویٹی ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے ایک سٹوری بنائی کہ بھئی ایک بیل ہے، اس بیل کے ایک سینگ کے اوپر کبھی اتنا بڑا ایک گولا رکھ دو تو وہ ٹکے گا؟ نہیں ٹکے گا. لیکن پیروں نے کہا کہ اس ایک بیل کے سینگ کے اوپر بہت بڑا ایک گولا
اگر بیلنس کیا جائے تو اس طرح سے خدا نے اس زمین کے نیچے ایک بیل رکھا ہے کہ یہ ساری زمین وہ بیل کے سینگ کے اوپر بیلنس کی گئی ہے. ایکچولی پیر سمجھانا چاہتے تھے گریویٹیشن کو، لیکن بیل کے سینگ کے اوپر رکھ کے بیلنس کی گئی. یہ سمجھایا کہ خدا تعالیٰ نے جو گریویٹی بنائی اور میگنیٹزم بنائی، تو اس میگنیٹزم کے ساتھ جو گریویٹی چیز تھی، ادھر اس کی سپیڈ ہے اور ادھر دوسری طرف سورج کی گریویٹیشنل پل ہے ہماری ارتھ کے سامنے. دو چیزیں ہو گئی، ایک طرف اس کو سورج کھینچ رہا ہے، مگر دوسری طرف یہ اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی ہے کہ سورج کی جو پولنگ پاور ہے وہ کام نہیں آ رہی. آپ ایک سٹک لے لو، ایک لمبی سی ڈوری، اس کے نیچے کچھ بھی ایک وزندار پتھر باندھ کے تو اس کو سٹک کو ایسا کرو تو وہ پتھر نیچے گر جائے گا، لٹکتا رہے گا. لیکن اسی سٹک کو آپ ایسا پھرانا شروع کرو تو یہ پتھر آہستہ آہستہ سٹک سے دور ہوتا جائے گا. جتنی سپیڈ بڑھاؤ گے یہ اتنا دور ہو جائے گا. کبھی بہت زیادہ سپیڈ کی ہے تو بہت دور ہو جائے گا، مگر وہ کھمبا، وہ جو تار یا ڈورا آپ نے باندھ رکھا ہے اس کو دور بھاگنے نہیں دیتا. یہی سورج کی پولنگ پاور ہے، اور دوسری طرف اس کی سپیڈ کی وجہ سے یہ زمین دور نہیں بھاگتی. اگر ذرا سا بھی سورج کی گریویٹیشنل پل ہماری پرتھوی کے اوپر ذرا سا بھی کم ہو جائے، اتنا چھوٹا سا بھی کہ وہ سینگ کے اوپر جو بیلنس کیا ہوا ہے اس کے اندر بالکل ایک مائکروسکوپک انچ جتنا، یعنی مائکروسکوپک کا میرا مطلب ہے 1/10 100 یا 1000 آف این انچ ذرا بیلنس ایسا ہو جائے تو بیل کے اس سنگڑے کے اوپر سے زمین گر پڑے، مطلب کہ یہ زمین اسپیس میں بھاگ جائے. تو یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. ایک خدا کی صفت ہے، دوسری بھی خدا کی بنائی ہوئی ہے، مگر خدا کی اپوزٹ صفت ہے. اسی کو ہم شیطان کہتے ہیں. اسی کو ہم نے دو اور چیزوں سے نام دیا، خیر اور شر. ہر خیر چیز، خیر کہتے ہیں اچھی چیز کو، بھلائی کو، وہ خدا کی طرف سے آتی ہے، اور شر یعنی خرابی جتنی بھی ہے وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے. خدا کی اپوزٹ فورس کو شیطان کہا گیا. شیطان کی اس اپوزٹ فورس کو خدا کہا گیا، شیطان کہا گیا، اور اسی کو ہمارے گنانوں میں دینت کہا گیا. دینت خدا کا دشمن، خدا کا اپوزٹ. تو آپ نے دینت کو سمجھ لیا. ہر زمانے کے اندر خدا کی تمام کریشن کے اندر دونوں چیزیں ہیں، خیر بھی ہے یعنی پازیٹیو فورس بھی ہے، شر بھی ہے جس کو نیگیٹو فورس کہتے ہیں. خدائی طاقت بھی نور کی ہے، شیطان کی بھی طاقت ہے. ادھر دینت ہے ادھر مولا ہے. تو یہ مولا اور دینت کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ 10 اوتار اب شروع ہوتے ہیں. جب یہ زمین بنی، آسمان بنا، پرتھوی بنی، سب کچھ بنا، لائف شروع ہونے سے پہلے خدا تعالیٰ نے یہ دونوں فورسز بنائی، دینت کو بھی اپوائنٹ کر دیا. اب اس کی یہ ساری سمجھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، پیروں نے ایک سٹوری بنائی. سٹوری یہ ہے کہ زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے امریکی ایک فرشتہ تھا. خدا نے اس کو بہت طاقت دے رکھی تھی. اس نے ایک بڑی دعوت کی. دیکھو پیروں کی کمالیت، دیکھو کیسی کیسی مشکل چیزیں سٹوری میں بیان کر دی. امریکی نے دعوت کی، تمام فرشتوں کو بلایا، مولا کو بھی بلایا. مولا کا اس وقت نام، اب بھی وہ وشنو بھی ہے، رام بھی ہے، تو اس وقت وشنو تھا. تو وشنو مہاراج بھی آئے، سب لوگ آئے. مگر جب یہ سب لوگ آئے تو امریکی اس نے یہ سوچا کہ یہ سب بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور بچے ہیں چھوٹے، وہ شور مچائیں گے. تو اس نے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دیا.
अब खाना जो बच्चों को खिला दिया, और जब ये सब बड़े बड़े लोग आए, खास तौर पे जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, तो इसमें एक महारिषि था, वो बहुत बिगड़ा। बिगड़ना चाहिए था विष्णु को, मगर बिगड़ गया वो। हमेशा छोटे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। जब भी वो बिगड़ गया, उसने गुस्से से कहा कि तुमने अपमान किया, हमको खाने के लिए बुलाया और उसके पहले तुमने बच्चों को खिला दिया। उसने इसको बद्दुआ की कि तेरे को 100 मध्यम अवतार मिले, यानी तेरी कंडीशन ऐसा समझ लो कि 100 डिग्री रूहानी आलम से लो हो जाए, उसका मतलब ऐसा कर लो। मगर इस तरह की स्टोरी है कि उसको 100 मध्यम अवतार यानी नीच अवतार मिले जिसमें तुझे दुख मिले, ऐसे अवतार मिले। बेचारा डर गया, खाना पीना तो बिगड़ गया, महफिल बिगड़ गई, बहुत घबराया, बहुत कुछ माफी मांगी, बहुत गिरियाजारी वगैरह की। गया विष्णु के पास। विष्णु ने कहा अच्छा चलो महारिषि के पास चले। गए महारिषि के पास, मौला को देख के खड़ा हुआ। मौला ने कहा कि भाई इस बेचारे से गुनाह हो गया, माफी मांगता है, बख्श दो। अच्छा मौला, तेरी खातिर मैं 20 माफ कर देता, 20% कम हो गया, डिस्काउंट मिला। सारी स्टोरी बड़ी अच्छी है, और स्टोरी के तमाम जितने भी एक्ट्स हैं, स्टोरी में जितने भी पात्र हैं, उसके अंदर सिग्निफिकेंस है, उसमें समझने की फिलॉसफी है। आज टाइम नहीं है उसका, कभी समझाएंगे इंशाल्लाह। तो यूं करते करते अलग अलग फरिश्तों के पास जाके मौला ने उसको माफियां दिलाई। उसने कहा महारिषि, दूसरा आया महारिषि के पास जाके उसने कहा कि अभी मेरी खातिर से कुछ कर दो। यूं करते करते बाकी 20 रह गए, 80 माफ हो गए। अब कोई इस लायक, इस दर्जे का नहीं था कि जिसका कोई असर महारिषि के ऊपर पड़ सके। तो मौला ने उसको कहा कि देखो हम ऐसा करें, चलो हम खेल बनाएं। खेल ये बनाए कि 10 अवतार तू ले, 10 अवतार मैं लेता। उसको दैत्य बनाया, और खुद मालिक तो है ही। उसको कहा कि तू मेरा ओपोनेंट बन जा। एक दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि रिक्रिएशन क्लब में आए, मिशनरियों की मेहमानी थी, सबकी रिपोर्टें पूछी, हाल पूछे। मौला ने फरमाया मिशनरियों को, देखा तुम हर संडे इधर जमा हुआ करो। अलवाजीन, तुम लोगों के लिए कह रहा हूं। मौला फरमाया कि तुम हर संडे को इकट्ठे हो और 2 ग्रुप बन जाओ। मामा फरमाया 2 ग्रुप बनो और तुम डिबेट करो, तुम उसको नीचे पाड़ने की कोशिश करो और ये ग्रुप उसको नीचे पाड़ने की कोशिश करे, एक दूसरे के साथ खूब डिबेट करो। मगर देखो बाहर निकल के एक दूसरे की दुश्मनी नहीं करना, क्योंकि ये तो महज एक डिबेट और खेल था। तो मौला ने भी एक खेल रचाया, 10 तू ले, 10 मैं लेता हूं, और इधर से ये 10 अवतार की बात शुरू हुई। उसको दैत्य बनाया। दैत्य का काम क्या है? ऑपोजिट करना। आप यूं समझ लो कि सॉकर का एक मैच है, तो हर पार्टी यही चाहती है कि मैं दूसरे के खिलाफ एक गोल कर डालूं। बस यही थी, एक गेम सॉकर की बना डाली मौला ने, एक हॉकी गेम बना डाली, कुछ एक खेल बना दिया। और इस तरह से कि मैं पहचाना जाऊं किस तरह से कि मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन खेल करूं तो पता लगे ना कि मैं अच्छा खिलाड़ी हूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं तो छुपा हुआ, कुंतुम मख्फियन, तुम तो कंजन मख्फियन, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था। तो उसने ये खेल बनाया अपने आप को जाहिर करने के लिए। तो हर क्रिएशन की चीज के अंदर, जितनी भी चीजें क्रिएशन में, उसमें 2 चीजें हैं, ऑपोजिट हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। जब वो पहला एमीबा दुनिया के अंदर पैदा हुआ तो उसके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सेस थी। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडीज हैं। तो ये बढ़ते 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 स्टेज बाय स्टेज इवॉल्व होते होते हर स्टेज के ऊपर दैत्य भी था, मौला भी था।
یہاں تک کہ ایک بہت بڑی سٹیج جس کو 4,32,000 برس لگے ایمیبا سے لائف شروع ہو کے مچھی تک 4,32,000 432,000 ایئرز لگے اور اس کے اندر کروڑوں سپیسیز نکل گئے. اور وہ زمانے کو حالانکہ کلجگ، اس کے پہلے دوآپر، اس کے پہلے تریتا اور اس کے پہلے ستیوگ، یہ 4 یگ ہیں. میں آپ کو صرف 4 یگ ہی کی سٹوری سنا رہا ہوں. اور یہ 4 یگ سے پہلے 4 کلب تھے اور 4 کلب سے پہلے 3 کرن تھے. اور اس کا حساب کرنے کے لیے کمپیوٹر چاہیے، قلم کام نہیں آئے گی. تو دیندارو، اس طرح سے یہ ایمیبا سے نکل کے جب ایوالو ہو کے 4,32,000 برس کے بعد ایک ایسا بڑا مگر مچھ کی طرح کا ایک ایسا فورس طاقت والا کوئی جانور تھا، اس کو دینت کا پارٹ کرنا تھا اور اس دینت کا نام رکھا گیا سنکھاسر. سنکھاسر کہتے ہیں شیل کو، یہ جو سمندر میں سے شیل نکلتے ہیں یہ سنکھاسر ہیں. سنکھاسر ایسا جانور ہے کہ چھوٹی موٹی بہت سی مچھلیاں بھی کھا جاتا ہے. اس میں سے ایسی کیمیکل نکلتی ہے پانی کے اندر کہ جہاں یہ شیلز ہوتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آتی ہی نہیں، آتی ہیں تو مر جاتی ہیں. تو سمندر کے اندر اتنے بہت شیلز پیدا ہو گئے کہ مچھلیاں ختم ہونے لگیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں، ان کے اندر جیو تھے. یہ روحانیاں خدا نے بنائی تھیں، یہ جیو خدا نے بنائے تھے، وہ نیک جیو تھے. اور یہ تو ایک بدماش کے روپ میں، دینت کے روپ میں آیا تھا. تو وہ جو جیو تھے، دیکھو یاد رکھو دیندارو، ہم کو قرآن شریف میں بھی کہا گیا ہے کہ تمام جتنی بھی لائف ہے وہ خدا کی عبادت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنی امانت کو درختوں کے سامنے یعنی ویجیٹیشن کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اپنی ناقابلیت، ڈسیبلٹی ظاہر کی. میں نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بھی کہا کہ یا مولا ہم اس لائق نہیں. میں نے پانی کے سامنے پیش کیا تو اس نے بھی کہا کہ یا مولا ہم اس کے لائق نہیں. تو کریشن میں سب کے سامنے جب میں نے اپنی ایک امانت پیش کی تو کسی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. خود کو ہمبل سمجھ کے، اس درجے کے لائق نہ سمجھ کے مولا کو کہا یا مولا ہم اس کے لائق نہیں. لیکن انسان نے اس کو فوراً قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑی کوئک نیچر کا ہے، جلد باز ہے، سوچے سمجھے بغیر لے لیتا ہے. اور انسان ہی سب سے زیادہ دکھی ہے. تمام سرشٹی کو دیکھ لو، خدا تعالیٰ خود کہتا ہے کہ تم اپنی چاروں طرف دیکھو، ہے کوئی ایسی چیز کہ جو اپنے پیدا کرنے والے کے قاعدے کے ورودھ چل رہی ہے؟ درختوں کا جو جھاڑ، ونسپتی، گھاس، ویجیٹیشن وغیرہ کا خدا نے جو لا بنا رکھا ہے وہ اس لا کے اوپر چل رہے ہیں. جانور اپنے لاز پہ چل رہے ہیں، پہاڑ اپنے لاز پہ چل رہے ہیں، ہوا کا بھی ایک لا ہے، آگ کے بھی لاز ہیں، پانی کے لاز ہیں، ہر شے کے لاز ہیں. اور تمام چیزیں خدا کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر چل رہی ہیں. صرف ایک حضرت انسان ہے کہ جو اپنی مرضی سے اونچا نیچا کر دیتا ہے، خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑ رہا ہے. تو اس زمانے کے اندر جو جیو تھے، تو جب یہ زمانہ بہت لمبے ٹائم تک چلا، سکھ کو، راحت کو، آبادی کو، خوشیوں کو ہم روشنی اور نور سمجھتے ہیں جیسا کہ دن ہے. دکھ کو، بے چینی کو، اوسکھ کو، پین کو، درد کو، غم کو ہم لوگ رات کے ساتھ، اندھیرے کے ساتھ مثال دیتے ہیں. جب سکھ شانتی ہوتی ہے تو یہ دن کی طرح ہے. دکھوں کو رات کہا. عربی زبان کے اندر رات کو ظلمت بھی کہا گیا. ظلمت اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمت بے عدلی کو کہتے ہیں، انجسٹس کو کہتے ہیں، دکھ کو بھی کہتے ہیں. تو یہ جو مچھلیاں تھیں، جو جیو مومن جیو تھے، مچھلیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، ان کو کئی نسلوں تک، سینکڑوں برسوں تک جب یہ ظلم بڑھتے گئے، دکھ بڑھتا گیا، یہ تمام سینکڑوں برسوں کا جو پیریڈ دکھ کا تھا، اس کو رات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے طاقت سے ایک زبردست مچھلی کو ظاہر کیا
اور اس مچھی نے آके تمام ان لچوں کو, بدماشوں کو, چوروں کو, دہیتوں کو ختم کر دیا. یعنی سکھ شانتی پھیلا دی. دکھوں کی رات چلی گئی, سکھوں کا دن اگ آیا. 4,32,000 برس کا یہ پیریڈ شروع ہو گیا, ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ایک دوسرا پیریڈ شروع ہوا. ہر 4,32,000 برس کے بعد اس طرح کا ایک پیریڈ آتا رہا کہ اس پیریڈ کے اندر رات بھی آئی, دن بھی آیا. یہ جو دکھوں کی رات تھی وہ بھی بڑی لمبی تھی. جیووں کے اوپر, روحانیوں کے اوپر, مومنوں کے اوپر, چاہے وہ مومن بیکٹیریا ہوئے, چاہے وہ مومن گدھے ہوئے, چاہے وہ مومن بیل ہوئے, چاہے وہ مومن پنچھی ہوئے, چاہے وہ مومن انسان ہوئے. مومن کا مطلب خدا تعالیٰ کے قانون پہ چلنے والا. تو جانوروں کے اندر بھی مومن ہے. تو ان مومنین کو جب ہی دکھ ملا تو خدا نے مچھی کا اپیئرنس لے کے اور وہ جو سنکھاسر تھا اس کو مار دیا. رات ختم ہو گئی, دن اگایا. اس وقت مذہب جو تھا یعنی خدا کی عبادت وغیرہ, تو اس کو گولڈ ایج ہمارے پیر صدر دین نے کہا. گولڈ ایج وہ سونے کا زمانہ تھا, خالص زمانہ تھا. اور اس زمانے کے اندر 100% لوگ یعنی وہ زمانے کے جو جیو تھے وہ عبادت کرتے تھے. مگر جب وہ دینت ظاہر ہو کے رات ختم ہو گئی, واپس دن نکلا, تو اس وقت 2.5% گناہ ہوئے. 97.5% پھر صدر دین نے ایکویشن بنائی اس طرح کہ 20 میں سے آدھا ٹکا گناہ پاپ نافرمانی, اور 19.5 حصے 20 میں سے یعنی 97.5% دنیا کے اندر عبادت بندگی اور خدا کے فرمان پہ چلنے کی بات تھی. 4,32,000 برس کے بعد پھر ایسا ہی ایک رات کا, لمبی رات کا زمانہ آیا کہ جو ہزاروں سال تک وہ چلی. جب مومن بہت دکھی ہو گئے تو پھر خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ ابھی میرے مومنوں کو کون دکھ دیتا ہے, تو اس کا نام تھا مدھو کیٹک. مدھو کیٹک کہتے ہیں انسیکٹ ایٹر. مدھو کیٹک دینت کا نام تھا, اس کا مطلب ہے انسیکٹ ایٹر. کیونکہ ایوولوشن بڑھ گئی, مچھلیوں میں سے انسیکٹس جو زمین کے اوپر وغیرہ رہتے ہیں وہ جاری ہو گئے. تو یہ جو انسیکٹ ایٹر کا ایک ایسا جسم تھا اس زمانے کے اندر کہ جو وہ زمانے کے بھگتوں کو, مومنوں کو, جیووں کو جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے, ان کو جب بہت دکھ دینے لگا تو خدا نے پھر اپنے نور کی, اپنی طاقت کا اظہار کیا. اور وہ اظہار ٹورٹوائز کی شکل میں تھا. ایک بہت بڑا ٹورٹوائز یعنی کاچبا پیدا ہوا. اس کاچبا نے یہ تمام جو انسیکٹ ایٹرز تھے ان سب کو مار ڈالا اور دنیا کے اندر واپس سکھ شانتی ہو گئی. تو یہ دوسری رات کا ظلمت کا پیریڈ ختم ہو کے واپس دن پیدا ہوا. تو اس زمانے کے اندر جب یہ سکھ شانتی ہو گئی, آہستہ 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 بدیاں برائیاں بڑھنے لگی. ایک ایسا آدمی یعنی ایک ایسا جیو پھر پیدا ہوا تیسری دفعہ, اور تیسری دفعہ یہ جو پیدا ہوا تو اس کا نام تھا مور دانو. تیسرا جو دینت تھا اس کا نام تھا مور دانو. مور دانو کہتے ہیں برڈ کلر. برڈ کلر کو مور دانو کہتے ہیں. اور برڈ کلر کے سامنے مولا نے اپنے نور کو جو ظاہر کیا اس کا نام تھا وراہ. وراہ مطلب اس کا ڈکشنری کے حساب سے ہوگ ہوتا ہے, HOG. یہ سور کی ایک فیملی ہے, مگر ایکچولی وراہ کا مطلب میمل, ناٹ ڈیفینیٹلی اور سرٹنلی ہوگ. اینی میمل فیملی کہ جو آج ہم کو اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن وہ میمل تھے. دیکھو کس طرح سے اسٹیج بائی اسٹیج ایوولوشن بڑھ رہی ہے. تو اس کے سامنے یہ جو برڈ کلر تھا تو یہ ظاہر ہوا کہ تیسرے پیریڈ کے اندر جو 4,32,000 برس کا ایک پیریڈ ہے, ایسے 10 پیریڈ ہیں. تو تیسرے پیریڈ میں برڈز پیدا ہو گئے تھے. تو جو برڈز کا کلر تھا اس کو اس نے
मार डाला, यानी मौला ने वापस तीसरी दफा रात का जो हजारों साल लंबी दुख की बात थी, पीरियड था, वो खत्म हो गई और फिर से सुबह हुई, सुख शांति हो गई। तो चौथी दफा भी ऐसा जब हुआ तो चौथी दफा जो जीव बहुत दुखी हुए उनको मारने वाला जो दैत्य था उसका नाम था हरनाकंस। हरनाकंस कहते हैं डिस्ट्रॉयर ऑफ वीक। हरण कहते हैं एक्चुअली डियर को। डियर बेचारा कमजोर जानवर है। तमाम बड़े बड़े खाने वाले जो जानवर हैं, शेर हैं, चीते हैं, वो हरण ही के पीछे लगते हैं। तो हरण बेचारा वीक है, उसको मारने वाला उसका नाम था हरनाकंस। तो हरनाकंस जो था उसकी स्टोरी आज डॉक्टर सिराज ने डिस्प्ले करके बताई, कुछ फोटोज भी बताई। तो किस तरह से हरनाकंस को मारा। हरनाकंस भी इबादत बंदगी करता था, विष्णु को राजी किया और उसके पास से प्रॉमिस ले लिया कि मैं मरूं ही नहीं। तो इसने डिटेल बनाई। विष्णु को कहता है कि मुझे प्रॉमिस कर, मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। कहा कबूल। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। विष्णु ने कहा कबूल। न मैं किसी हथियार से मरूं, न किसी जानवर से मरूं, न किसी इंसान से मरूं। कहा कबूल। न रात को मरूं न दिन को मरूं। कहा कबूल। अब ये समझ बैठा कि मैंने तो चारों तरफ से ऐसी दीवार बांधी के मौत घुस ही नहीं सकती, मगर मौला का सामना कोई कर सकता है। मौला ने शेर का अवतार लिया। खुदा का जो नूर था वो उस जमाने के अंदर जो लाइफ थी, आला से आला दर्जे की जो लाइफ थी, उस लाइफ के हिसाब से खुदा ने लायन का एक स्वरूप लिया जो आधा नीचे से इंसान था और ऊपर से यानी दिल के ऊपर से वो शींग शेर की तरह था। हरनाकंस को पकड़ा और दरवाजे के ऊपर बैठा, कुर्सी रख के मौला एक पांव बाहर रखा, एक अंदर रखा। तो न अंदर है न बाहर है। डाला अपनी लैप में, न नीचे है न ऊपर है, अधर है। हथियार से नहीं मारा तो नाखून से उसका पेट फाड़ दिया। और वक्त शाम का था, न दिन थी न रात थी। तो हरनाकंस को इस तरह से बर्बाद किया। और चौथी दफा हजारों बरसों का जो दुख का पीरियड, जो रात थी ना, उसको खत्म करके वापस दिन उगा दिया, यानी फजर हुई, खुशी का मौका आ गया। और खुदा ताला के जो भगत मोमिनीन थे उस जमाने के अंदर जो जीव थे, उन बेचारों को सुख मिला। तो ये 4 पीरियड 4,32,000 बरस के जो थे जिंदारों, इसको कहते हैं सतयुग। इसके अंदर मौला के नूर को 4 दफा जाहिर होना पड़ा। अब वो जमाने के अंदर जमीन में से जो स्पेसीज निकलती थी, उस लाइफ का मैं आपको हिसाब बताऊं तो हमारे पीरों ने कहा कि 99 करोड़ी जंक थे। इसको संस्कृत में यक्ष कहते हैं। ये यक्ष क्या है? इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज, इसको यक्ष कहते हैं। इसकी जो स्पेसीज थी, टोटल पॉपुलेशन नहीं, इसके जो कबीले थे, ग्रुप्स थे, स्पेसीज थी, वो 990 मिलियन स्पेसीज थी, बैक्टीरियाज और इंसेक्ट्स की। साइंस को अभी तक इस बात का पता नहीं है कि वो स्पेसीज की तादाद कितनी थी। ये काउंटिंग पीर ने बनाई है। 990 मिलियन स्पेसीज ऑफ बैक्टीरियाज एंड इंसेक्ट्स। उसके अंदर जर्म्स, बैक्टीरियाज वगैरह, वो लाइफ के जो लाइफ इन वाटर प्रोमिनेंट हुई थी। इसके अंदर से सवाल पैदा होता है। शायद कोई स्कूल का लड़का पूछ बैठे, हाउ डिड ही नो दिस 990 मिलियन स्पेसीज। तो देखो दिनदारों, इमामों और नबियों की जो ताकत है वो रूहानी ताकत होती है। वो लोग जो कुछ कहते हैं वो अपनी नूरानी ताकत से कहते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम एक दिन बैठे कुछ काम कर रहे थे, एक यहूदी निकला। यहूदी हमेशा छेड़ता रहता था मौला को कि किसी तरीके से मौला को मैं डाउन करूं। तो कुछ लोग और भी थे। आगे कहता, या अली, मैंने सुना कि तुम बहुत इल्म वाले हो, तो मुझे एक बात पूछो। मौला पूछो। कहता, या अली, मेरे को बताओ कि कौन से जानवर हैं जो अंडे में से निकलते हैं और कौन से जानवर हैं कि जो माँ के पेट में से यानी डायरेक्टली वूम्ब में से निकलते हैं। मौला अली
काम करते करते नजर नीचे ही थी और उसको इसी तरह से फरमान किया कि जो जानवर जिनके कान बाहर दिखते हैं, नजर आते हैं, वो माँ के वूम में से पैदा होते हैं, जिनके कान नहीं दिखते वो अंडे में से पैदा होते हैं। बोलो, किसी साइंटिस्ट ने कहा है आज तक ये बात? और सारी दुनिया में घूम जाओ, मौला की इस बात को जो 1400 साल पहले कही हुई है, आज देख लो, किसी भी जगह देख लो। मैंने एक दफा बैट्स देखे, मेरे खुद के घर के गार्डन में बैट्स आते थे, वो उड़ते थे और उनके कान भी बड़े हैं, चूहे जैसा मुंह है उनका। तो मैं ख्याल करता था कि या मौला, तूने कहा कि जिनके कान बाहर होते हैं वो अंडे में से निकलते हैं, तो ये अंडे कहाँ रखते होंगे? अभी वो बहुत मुद्दत तक रहे। बाइनोकुलर लेके के मैं उनकी स्टडी करता रहा। वो ऊंधे लटकते हैं दरख्तों के ऊपर, जो बैट्स हैं ना, उनके पीछे 2 हुक्स होती हैं, वो झाड़ के साथ हुक्स लगा के ऊंधे लटकते हैं, पंख बंद कर देते हैं और वहीं उनकी मेटिंग होती है। इसी तरह ऊंधे लटकते लटकते इसी तरह से पड़े रहते हैं और आखिर आहिस्ता आहिस्ता उनके वूम में से बच्चा निकलता है और वो बच्चे की भी पहले हुक्स निकलती हैं, ऊंधा निकलता है। आदमी का तो बच्चा पैदा होता है सिर पहले निकलता है, तो कोई बहुत ही आदमी बदमाश होवे, किसी की नहीं सुने, तो हम उसको कहते हैं कि तो ऊंधो पैदा थी है, यानी पहले पाँव निकले हैं। तो ये जो बैट्स हैं, इनके बच्चे बाहर निकलते हैं, ऊंधे निकलते हैं और इनकी जो हुक्स होती हैं वो झाड़ को पकड़ लेती हैं, माँ हट जाती है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको फीड करती है। इस तरह से ये देखो खुदा ताला की कुदरत। लेकिन अली अलैहिस्सलाम ने, हमारे मौला ने 2 फिक्रों के अंदर, 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस के अंदर साइंस की कितनी बड़ी बात कह दी। तो पीरों ने भी जो कुछ कहा है वो अपनी उसी नूरानी ताकत के हिसाब से कहा है। तो दिनदारों, ये सतयुग का पीरियड 17,28,000 बरस का पूरा हुआ। इसमें 4 दफा मोमिनों के ऊपर, जीवों के ऊपर दुख पड़े जो हजारों साल तक चलते रहे, और ये जो दुख का जो पीरियड था उसको रात कहा गया है। तीसरा पीरियड जब शुरू हुआ तो ये पीरियड त्रेता युग का था। त्रेता युग के अंदर इसी तरह का एक दैत्य पैदा हुआ। उस दैत्य का नाम था बल, राजा बल। बल कहते हैं स्ट्रॉन्ग को, जो ताकत वाला होता है। वो छोटे मोटे सबको मारता रहता था, बहुत दुख देता था। हो सकता है कि ये इंसान के रूप में, क्योंकि सामने इमाम का जो अपीयरेंस जो था तो वो वामन था, और वामन कहते हैं वो मिसिंग लिंक है जिसको आज साइंटिस्ट ढूंढ नहीं सके, बिटवीन चिंपांजी एंड मैन। उसका नाम पीरों ने वामन रखा। इंग्लिश में वामन कहते हैं ड्वार्फ को, जो छोटे कद का होवे, बहुत छोटा था। जैसा कि आप समझ लो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने ये गोलायत था, वो कितना बड़ा था, बहुत बड़े साइज का था। आज डॉक्टर शिराज ने उसकी हमको फिल्म, वो स्लाइड भी बताई। तो ये जो ड्वार्फ थे, और वो तो बहुत बड़ा ताकत वाला ऊंचा था। रसूल अकरम की हदीसों में से हमें कुरान शरीफ की बाज चीजों का पता लगता है जो कुरान में नहीं, यानी कुरान की चीज है, एक्सप्लेनेशन हदीस में है। अल्लाह ताला फरमाया, आद और समूद और उनकी दूसरे पहले लोगों की हालतों का जिक्र कर इनको, यानी स्टोरी सुना। रसूल को कहा कि तुमने कभी उनको देखा ही नहीं कि वो कितने ऊंचे और कितने बहादुर थे। तो रसूल अकरम को पूछा गया तो रसूल फरमाया कि उस जमाने के अंदर उनका कद जो था, हाइट जो थी 40 यार्ड की थी, 120 फीट। आज हम इमेजिन कर सकते हैं कि 120 फीट का आदमी या कोई जानवर होगा? हो सकता है। तो उस जमाने के अंदर ये जो बर्ड राजा था वो गरीबों कमजोरों को बहुत दुख देता था, और वामन अवतार लेके, जिसको हम एप भी कहते हैं, और सच पूछो तो वो फर्स्ट ह्यूमन रेस का सरदार था, उसने बर्ड को मारा और उस जमाने के जो जीव थे उनको सुख शांति देके उनकी दुखों की रात पसार कर दी और दिन उगा दिया। छठी दफा यानी विजय त्रेता युग के अंदर सेकंड टाइम, मगर टोटल 6th टाइम फिर इसी तरह का एक दैत्य पैदा हुआ, खुदा का दुश्मन लोगों को सताने वाला हुआ।
اور उस आदमी का नाम उसको कहते हैं हम लोग जरासिंह। उसको हमारे गिनानों के 10 अवतार के हिसाब से कहा गया जरासिंह। जरासिंह एक ऐसा जानवर था कि जिसके 1000 टेंटेकल्स थे, 1000 हाथ होंगे, पांव होंगे। आप देख लो, एक स्पाइडर है या एक बिच्छू है जिसको हम इंग्लिश में स्कॉर्पियन कहते हैं, तो उस जमाने में हो सकता है कोई ऐसा जानवर हो कि जिसके 1000 टेंटेकल्स थे। ये जो जरासिंह था ये भी बड़ा दुख देने वाला था। जैसे जैसे जमाना बदल गया, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, जैसे जैसे जीव बढ़ते गए, तैसे तैसे दुख भी बढ़ते गए और राहत घटती गई, पाप बढ़ता गया, मजहब घटता गया, सवाब घटते गए, गुनाह बढ़ते गए। तो इसको फिर मौला ने अपना एक स्वरूप लिया, खुदा का नूर जाहिर हुआ और इसका नाम था फरसी राम। फरसी कहते हैं एक्स को। ये वो केव मैन होना चाहिए कि जिसने सबसे पहले फ्लिंट यूज किया। इसने एक फरसी बनाई और उसके टेंटेकल्स जो थे इससे काट काट के उस दैंत का नाश किया, जीवों को सुख दिया, दुखों की रात दूर हो गई और सुखों की सुबह शुरू हो गई। इस वक्त 7th टाइम, लेकिन विजय त्रेता युग में 3rd टाइम एक ऐसा और दैंत पैदा हुआ कि जो और भी ज्यादा ताकत वाला और बहादुर था और इसका नाम था रावण। रावण कहते हैं प्राउड को, क्रूअल को। ये इसका लिटरेरी मीनिंग है रावण का, क्रूअल एंड प्राउड। इसके सामने राम ने अपनी अपीयरेंस की और राम का मतलब होता है अदल करने वाला, जस्ट या सिंसियर, कि जो सच्चा होवे, अपने कौल के ऊपर खड़ा रहे। इसका राम का लिटरेरी मतलब ये है। मैंने आपके सामने तमाम दैंतों और अवतारों का लिटरेरी मतलब भी कर दिया है। तो राम ने रावण का नाश किया, दुखों की रात दूर हो गई, सुखों की सुबह शुरू हो गई। इस विजय त्रेता युग के अंदर बर्ड्स, फ्लाइंग क्रिएचर्स वगैरह, जिसको हमारे पीरों ने 56 करोड़ी मेघमाड़ा कहा। ये जो मेघमाड़ा थे इनको बर्ड्स और फ्लाइंग क्रिएचर्स के साथ रखा। इनकी 560 मिलियन स्पेसीज हुई उस जमाने के अंदर। और अभी टोटल एरिया जो दुनिया का था वो इतना नहीं था कि जितना आज है, उस वक्त कमती था। और ये सिल्वर एज कही गई, ऊपर की गोल्ड एज थी, ये सिल्वर एज थी कि जिसके अंदर 25% सिन थे, गुनाह होते थे, 75% इबादत और नेकियां होती थी। तो ये 2 युगों को टोटल हुआ 30,14,000 बरस, 3,14,000 ईयर्स। अभी त्रिजय द्वापर युग में इसी तरह से एक दैंत पैदा हुआ, उसका नाम था कंस। कंस यानी उसको इंग्लिश में कंसा कहा गया। ये एन है और कंस कहते हैं कुश में से ये चीज निकली, मारने वाला, किलर। और ये कंस ऐसा था कि उसने अपनी सगी बहन के 7 बच्चों को मार डाला, बड़ा जालिम था। तो इसके सामने खुदा का नूर कृष्ण के अंदर जाहिर हुआ और कृष्ण कहते हैं डिप्लोमेट को। वर्ड कृष्ण का मतलब है चालाक, होशियार, डिप्लोमेट। कृष्ण का एक और मतलब भी है और वो है करसन, यानी टिंटेड। उसका रंग जो था डार्क था। तो कृष्ण ने कंस का नाश किया और ये 8वीं दफा दुनिया के अंदर रात का पीरियड खत्म होके वापस दिन सुखों का उगा। इस त्रिजय द्वापर युग के अंदर कॉपर एज कही पीरों ने इसको, और इस कॉपर एज के अंदर 50% गुनाह होते थे, 50% नेक काम होते थे। और इस जमाने के अंदर 32 करोड़ किन्नर हुए, 320 मिलियन स्पेसीज ऑफ एनिमल्स, लाइफ ऑन ग्राउंड प्रोमिनेंट। उस पहले जमानों के अंदर जमीन पानी के अंदर लाइफ ज्यादा थी, दूसरे जमाने के अंदर हवा के अंदर ज्यादा लाइफ थी, प्रोमिनेंट थी।
तीसरे टाइम के अंदर जमीन के ऊपर लाइफ प्रोमिनेंट हो गई। और ये वो वक्त था दीनदारों कि जब जमीन के अंदर फड़फड़ादी वेजिटेशन वगैरह हिसाब बिगड़ की हुई। और देखो पीरों ने एक और हमको कमाल की बात कही है, और वो ये है कि 3 बिलियन या ऐसा कहूं 3,039,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन हुई। अभी तक साइंटिस्टों ने ये फिगर हमको नहीं बताई। इसको हमारे पीरों के गिनानों में आधार भार वनस्पति जो कहा, तो आधार भार वनस्पति मीन्स 3,039,132,000 वेराइटीज ऑफ वेजिटेशन। चौथे कल युग के अंदर, बीजे त्रेता युग के अंदर 9th टाइम एक ऐसा दैंत जिसका नाम था दृष्ट दर्जोधन। ये दर्जोधन कहते हैं लिटरेरी मीनिंग में विकेट, बदमाश, लुच्चा, क्रूअल। इसके सामने श्री बुद्ध अवतार, जिनको बुद्ध कहते हैं वाइज, को कृष्ण के टाइम में हुआ, लेकिन मरा ये बुद्ध के टाइम में। पांडवों ने इनको मारा, तो दुर्योधन का नाश किया। चौथे कलयुग के अंदर दैंत कालिंगा है। कालिंगा कहते हैं चीटर को, जो दगा फरेब करे उसको कालिंगा कहते हैं। कालिंगा का लिटरेरी मीनिंग है चीटर, चोर, सिनर। और इसके सामने अली है। अली का मतलब हाई, ऊंचा, महान। तो ये जो चौथे युग के अंदर ये जो दैंत कालिंगा है दिनदारे, वो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। ये 10वां नकलंकी अवतार, निष्कलंकी कहते हैं, कि जिसमें कोई ऐब न होवे। ये सुबहानहू ताला की सिफत है, अल्लाह का वो नूर कि जो तमाम जमाने के अंदर उतरता चला आया, अपीयर होता रहा, वो अली के अंदर अपीयर हुआ। और इस जमाने के अंदर कलयुग बैठा, उसको अभी तक लगभग 7,000 बरस हो गए हैं। ये 7,000 बरस के अंदर 36 करोड़ मोमन हुए, उनमें से 12 करोड़ मोमन पास हो गए, जो पीर सदरुद्दीन की नूर के साथ लगे। और ये जो वक्त है, ये 75%, 75,000, 7,000 बरस पीर सदरुद्दीन तक, उसमें 75% गुनाह रहे, 25% नेकियां इबादत रही। लेकिन पीर सदरुद्दीन के बाद अब जो टाइम हम पसार कर रहे हैं, जिसको हम आज फड़तार वेला कहते हैं, इसके अंदर 97.5% गुनाह है और 2.5% नेकियां हैं, जो टाइम अभी हम पसार कर रहे हैं। इसलिए हमको एक्सचेंज रेट बढ़ गया हमारा। इतने बहुत जब इन्फ्लेशन आ गई तो एक्सचेंज रेट बढ़ गया। एक करो तो 1.25 लाख का सवाब मिलता है। तो दीनदारों, इस जमाने के अंदर जिसमें से आज हम पसार हो रहे हैं, दैंत कालिंगा के साथ लड़ेगा। अभी ये जो वक्त हम पसार कर रहे हैं, ये रात का वक्त है, क्योंकि दुख गुनाह बहुत है, लोगों के अंदर बेचैनी बहुत है, लोग दुखी हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, और दिन ब दिन दुख बढ़ते जाएंगे। मैं गए 5-6 साल से सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ गया हूँ, मैंने 79 से 6 बरस हुए, मैंने ये चीज एडॉप्ट की कि जमाने के अंदर जहाँ भी घूमूं मैं वाजें करता रहता हूँ। और उन वाजों के अंदर मैंने कहा है, पीरों के गिनानों, इमाम के फरमानों और मुलाकातों में से जो कुछ भी मुझे मिला, मैंने जमात को अर्ज की कि दिन ब दिन गुनाह बढ़ेंगे, नेकियां घटेंगी, तो क्या होगा? दुख बढ़ेंगे, तकलीफें बढ़ेंगी, व्याधि चिंता बढ़ेगी, नर्वस टेंशन बढ़ेगी, मन में शांति नहीं रहेगी। ये दिन ब दिन बढ़ते रहेंगे। रात सख्त हो रही है और 125 बरस ऐसे ही निकलेंगे, और 130 ईयर अभी तक हमको पसार करने हैं। मौला अली जब वो दैंत कालिंगा को मारेगा, उसमें अभी तक 125 बरस से ज्यादा हैं। दुनिया और भी खराब होगी। हज़रत इमाम का एक फरमान याद करो, ये फरमान साहब ने दारुस्सलाम में भी किया
58 में मौला जब आए इमाम बन के, सेकंड मुलाकात के अंदर साहब ने बच्चों को कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं को दुनिया के अंदर जो तकलीफें दुख पड़े उससे ज्यादा तुमको दुख पड़ेंगे। फरमाना ये मौला फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि दुखों के सिवा तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें आराम के थोड़े से साइकिल्स और राहत के सामान मिलेंगे, लेकिन दुख बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये रात का जमाना है, गुनाहों की जिंदगी है। 2.5% ही इबादत है, 97.5% गुनाह है। इसके सामने प्रोपोर्शन भी दुखों का ज्यादा है, गुनाहों का ज्यादा है। दैंत कालिंगा की फोर्सें बढ़ती जाएंगी। दैंत कालिंगा के ऊपर मेरी बहुत सी वाज़ें हैं। ये दैंत कालिंगा बहुत चैन चाड़े करेगा, लोगों को बहलाए फुसलाएगा, और उसके लिए पीरों ने तो बहुत कुछ कहा। दैंत कालिंगा के ऊपर वाइज नहीं हो सकती आज, मगर थोड़ा सा आपको कहूं कि ये दैंत कालिंगा कौन है। जैसे कि खुदा ताला एक पर्सन के अंदर खुद को लिमिट नहीं कर लेता, वो अपने नूर की ताकत एक पर्सोनिफाइड शक्ल के अंदर जाहिर करता है। इसी तरह से ये दैंत कालिंगा की भी फोर्स है, वो किसी हालत में जाहिर होती है। कम्युनिज्म जो है ये दैंत कालिंगा है, कम्युनिज्म। और कम्युनिज्म दैंत कालिंगा के हाथ में कोई छुरी, चाकू, तलवार, भाला, रिवॉल्वर, बंदूक तो चाहिए ना। वो जो हथियार वेपन है उसका, वो साइंस है। साइंस बढ़ती जाएगी, साइंस बढ़ने से हमारा ईमान बिगड़ जाएगा। जब किसी आदमी के हाथ में सामने गुस्से में होवे और उसके हाथ में तलवार, छुरी, चाकू या रिवॉल्वर होवे तो हम कैसे डर जाते हैं। इसी तरह से ये जो साइंस है, जो दैंत कालिंगा का हथियार है, इसके सामने हमारा ईमान डर जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं, साइंस की तरफ चले जाते हैं, साइंस को सच्चा मानते हैं। यही तो निशानी है उसकी, दैंत कालिंगा की। आज दुनिया में जो कम्युनिज्म है वो कमजोर है, मगर हमको पीरों ने कहा है कि ये दिन ब दिन पावरफुल हो जाएगा और सारी दुनिया के कम्युनिज्म का सेंटर चाइना बनेगा। भले आज रशिया है और चाइनीज ने कम्युनिज्म रशिया से सीखा, लेकिन दिन में आप देखोगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 25, 30, 40, 50 इयर्स में दिन ब दिन चाइना की ताकत बढ़ती जाएगी। यह चीज हमको 900 बरस पहले पीर शमस ने कही कि जब दुनिया के अंदर किसी को इस बात का इल्म नहीं था, मगर हमारे पीरों ने 1000 बरस पहले यह चीज को देख लिया। चाइना बढ़ता जाएगा। देखो पीरों ने कहा है कि चाइना के 40 लाख दुनिया में एजेंट होंगे कि जो दुनिया के अंदर लोगों का दिल खराब करेंगे, यानी ईमान से हटाएंगे। है जी 40 लाख दैत कालिंगा नाचेला जी, 40 लाख यानी 4 मिलियन ते अवरनु जीवा डोलावे जी, लोगों का दिल हिलाएगा, शंका में डाल देगा, मन स्थिर नहीं रहेगा। ये 40 लाख चेले, ये चेले कौन? साइंटिस्ट। दुनिया में 40 लाख साइंटिस्ट नवी नवी रमत करेंगे, नवी नवी डिस्कवरी करेंगे। दुनिया में 40 लाख साइंटिस्ट नवी नवी रमत करेंगे, नवी नवी डिस्कवरी करेंगे और लोगों को मजहब से हटा देंगे। जमात खाना छोड़ दिया टेलीविजन की वजह से, छोड़ दिया ना, बैठे रहते हैं उधर। बच्चों की इमेज खराब हो गया, कैरेक्टर खराब हो गया टेलीविजन की वजह से। ये खाली छोटी सी मिसाल देता, ऐसी तो बहुत सी मिसालें हैं। और कैसी कैसी वो चीजें पैदा करेगा। फरमाया है कि ये जो गारा है ना, गारा कहते हैं मड को, मड में से खंड बनाएगा, गुड़ बनाएगा। आज जो आप सेक्रीन खाते हैं ये टार में से निकलती है। टार जो है ये मड है, काले रंग का टार, उसमें से सफेद रंग की एक थोड़ा टार मुंह पे रखो तो कितना कड़वा लगे पता, लेकिन यही सेक्रीन हम खाते हैं, वो मीठी होती है। जी गारो मंत्री ने दैत गोड़ बनाव से जी, तिया गोड़ ना परबा
चला वो जी। पर अब मीन हिसाब बिगड़ की इसकी सप्लाई होगी कि आपको जितनी चाहिए सेकरी मिलती है जी। पानी मंत्री ने दैत गरत बनाव से जी, तिया गरत ना परबा चलाव से जी। पानी को ऐसा बना देगा कि वो घी मिलेगा, और वेजिटेबल घी खाते हैं, वो कहाँ से आता है? कोई गाय के पेट से नहीं निकलता। यही अलग अलग किस्म के पानी इकट्ठे करके उसमें से उसको घी बनाता है। यहाँ पानी का मतलब जूसेस। तो इस तरह से ये सारे गिनान के अंदर बहुत कुछ का है। मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा, दैत कालिंगा मरे हुए माँ बाप को दिखाएगा। पीर शम्मस ने 900 बरस पहले जब जमात को ये सुनाया तो वो लोग हैरान हो गए। आज कुछ हैरानी की बात है? मेरा बाप गुजर गया, 25 बरस हुए, आज मैं उसकी वो फिल्म लगाता हूँ पर्दे के ऊपर, तो हमारे अब्बा घूमते हैं, फिरते हैं, हंसते हैं, मरे हुए माँ बाप को देखता हूँ। कागज लेके तो पीर ने फरमाया कि कागज मंत्री ने दैत पोपट पढ़ा उसे। कागज को इस तरह से बुलाएगा कि जैसे पोपट बोलता है, पैरेट बोलता है। ये रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ये टेप रिकॉर्डिंग, ये कागज की तरह ही है ना। तो ऐसी ये सारी साइंस का हथियार कम्युनिज्म यूज करेगा। एक जमाना आएगा दीनदारों, रशिया भी गिर जाएगा, अमेरिका भी गिर जाएगा, दुनिया में एक ही वर्ल्ड पावर होगी और दैट विल बी चाइना। ये वर्ल्ड पावर का आज से 125-30 ईयर्स के बाद जो कोई भी प्रेसिडेंट या प्रेसिडियम का चेयरमैन उधर चाइना में बैठा होगा, वो मगरूर हो जाएगा, मगरूर हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा, दुनिया को नाच नचाएगा। सारी दुनिया उससे कांपेगी और सारी दुनिया के अंदर कम्युनिज्म फैल जाएगा। बहुत थोड़ी पॉकेट्स बचेंगी दुनिया में कि जहां कम्युनिज्म नहीं आएगा, और उसकी साइड के अंदर बहुत कुछ सस्ता मिलेगा, बहुत कुछ। लोग ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, आसानियां मिलेंगी, राहतें मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, बड़ाइयां मिलेंगी, ओहदे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, और दुनिया में भगत दिन ब दिन घटते जाएंगे, घटते जाएंगे। कोई नवाई की बात नहीं कि 20 मिलियन में से आज हम 15 मिलियन रह गए हैं, गए लगभग 50 बरस में। इस्माइली घट रहे हैं और भी घटेंगे, इस्माइली घट जाएंगे, पॉपुलेशन में घट जाएंगे। बहुत से इस्माइली हैं वो मजहब छोड़ देंगे, कोई किसी मौलवी की वजह से, कोई नमाज की वजह से, कोई मस्जिद की वजह से छोड़ दिए। पाकिस्तान के अंदर करीमाबाद के अंदर इस्माइलियों ने 4-5 हजार इस्माइलियों ने अपना मजहब छोड़ दिया, मस्जिद में जाके सुन्नी हो गए। और बहुत से ऐसे सुन्नी हैं कि जो वो कम्युनिस्ट हो गए। आज ये ईरान और इराक के अंदर कितने कम्युनिस्ट हैं वो शायद सबको पता ना होगा। तो दुनिया के अंदर मजहब की उछल पाथल हो जाएगी, दुनिया के अंदर मजहब घट जाएगा। इमाम के आजू बाजू में बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे। ऐसा वक्त आएगा कि पीर शम्स कहते हैं 12 कोस पे एक बत्ती जलेगी। कोस कहते हैं 2 माइल को। आज तो हम देखते हैं एक रूम में देखो कितनी बत्तियां हैं, और बाहर निकलो तो 1 माइल के अंदर 40 बत्तियां लगती हैं रास्ते के अंदर। और पीर शम्स कहते हैं कि 24 माइल पे एक बत्ती जलेगी। ये बत्ती ईमान की बत्ती। दुनिया के अंदर 24 माइल के रेडियस के अंदर एक मोमन नजर आएगा कि जिसके दिल के अंदर ईमान के मोहब्बत और नूर की बत्ती जलेगी। इतना दुनिया के अंदर दुख बढ़ जाएगा, रात दुखों से भर जाएगी, और आखिर फिर मौला उठ के अपनी रूहानी ताकत से फोर्सेस ऑफ नेचर काम करेंगी और दैत कालिंगा को मारेंगी। उस वक्त दुनिया की वस्ती 15-16 बिलियन हो जाएगी, 15-16 बिलियन। और जब शांति होगी तो 30-40 करोड़ आदमी बचे होंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। दुनिया की बड़ी बड़ी तमाम सिटीज बर्बाद हो जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, मोटरें नहीं रहेंगी, ट्रेनें नहीं रहेंगी, एरोप्लेन नहीं रहेंगे, और हमको गामड़े की जिंदगी वापस शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन सुख शांति होगी, मोहब्बत होगी, कोई क्राइम नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा,
सुख की नींद सोएंगे, खुदा को याद करेंगे, रात दुखों की खत्म हो जाएगी और सुखों की सुबह शुरू हो जाएगी। और इस पीरियड को जो सुखों का पीरियड होगा, फिर कहते हैं कि 125,000 ईयर्स तक लंबा होगा। और ये सुखों का पीरियड 1.25 लाख वर्ष रिखियों राज करे, पक्षी महादिन मंडाए। उसके बाद ये जो धरती है, ये जो अर्थ है, बर्बाद हो जाएगी। 125,000 ईयर्स का सुख शांति का पीरियड निकलेगा और उस पीरियड के अंदर कोई गुनाह नहीं होगा। तो जब ये रात खत्म हो जाएगी, दिन उगेगा, इसी को सुबह कही गई। अब मैं आपको कुरान शरीफ के अंदर से ये 10 अवतार की बात बताऊं। जो इमाम ने फरमाया ना, कुरान के अंदर 10 अवतार की बातें हैं। मैंने आपको बताया दीनदारों कि दुखों का जो पीरियड है हम उसको रात कहते हैं और सुख को फजर कहते हैं। सूरतुल फजर कुरान शरीफ के अंदर एक सूरा है। अल्लाह फरमाता है कि वल फजर, मैं सुबह की कसम खाता हूँ। कसम किसकी होती है? जो चीज हमें प्यारी होती है। सुख शांति के पीरियड को खुदा प्यार करता है, इसके लिए खुदा ने कसम खाई, वल फजर वल्लियालिन अश्रिन, 10 रातों की कसम। पहले सुबह की कसम खाई, फिर 10 रातों की कसम खाई। वशिफे वल वस्र, और इवन और ऑड की कसम खाई। वल्लैल इज़ा यस्र, हल फी ज़ालिका क़स्मुन लिज़ी हिज्रिन, एंड द नाइट्स, बाय द डॉन, खुदा ने सुबह की कसम खाई। एंड द 10 नाइट्स, मैंने आपको 10 नाइट समझाई, उन 10 रातों की कसम। एंड द इवन एंड द ऑड, ये इवन और ऑड क्या? ये 10 अवतार और 10 दैत, ये इवन एंड ऑड। एंड द नाइट व्हेन इट मूव्स ऑन टू इट्स एंड, इस रात की कसम के जो खत्म होने वाली है, 125 वर्ष के बाद आज से खत्म हो जाएगी। Is there not in it a strong evidence for a man of understanding? खुदा कहता है, क्या तुम्हारे लिए समझने के लिए ये प्रूफ काफी नहीं? खुदा कहता है, Is there not in it a strong evidence for a man of understanding? ये वो है 10 अवतार की बातें कि जिसकी तरफ इमाम ज़मान ने इशारा किया कि 10 अवतार को इस्लामिक प्रिंसिपल से समझाओ। मैं अपना ये लेक्चर खत्म करूं, आपके सामने कुछ पढ़ना चाहता हूं। मेरी एक बुक इंशाअल्लाह थोड़े टाइम में बाहर आएगी। उस बुक का नाम होगा इस्माइली तरीका, हमारे मजहब के प्रिंसिपल्स, इस्माइली मजहब की नजर से। बाज हमारे आदमी ये कहते हैं, 10 अवतार तो हमको हमारे पीरों ने हिंदुओं में से इस्माइली बनाने के लिए कहे। भाई हिंदुस्तान में पीर कभी गए? सबसे पहले जो हिंदुस्तान में पीर गए उनका नाम था पीर सदगुरु नूर, और वो इमाम श्री मुस्तनसिर बिल्ला फर्स्ट के जमाने में गए। इमाम मुस्तनसिर बिल्ला हमारे 18th इमाम थे। तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के पिता का नाम क्या? मौलाना जाहिर। मौलाना जाहिर के पिता का नाम क्या? मौलाना हाकिम। यानी इमाम मुस्तनसिर बिल्ला ने हिंदुस्तान में पीर भेजे। उसके पहले यानी इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के दादे इमाम हाकिम अलैहिस्सलाम ने पब्लिक के अंदर ये बात कही। देखो दीनदारों, मैं फोटोस्टेट कॉपी करके लाया हूँ। इस किताब का नाम है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। मशहूर किताब है। इसकी 7 वॉल्यूम्स हैं और ये 6th वॉल्यूम है। इसके अंदर लिखा हुआ इमाम हाकिम की बाबत में, जो कि इस आदमी ने इमाम हाकिम को बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट नहीं किया। तो फरमाया है कि ही एस्पायर्ड अबव द फेम ऑफ ए प्रॉफिट, यानी ये कहता है
कि इमाम हाकम ने हमेशा अपने आप को पैगंबरों से भी ऊंचा समझा, और वो थे, इसमें कोई शक नहीं. एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ द विजिबल इमेज ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, और अपने आप को इंसानी रूप के अंदर फिजिकल इमेज में खुदा का नूर बताया. सच बात है, इसमें कोई झूठ बात नहीं थी. हु आफ्टर 9 तक वापस कहता हूं कि मौलाना हाकम कहते हैं, यानी ये आदमी लिखता है कि हु आफ्टर 9 apparitions on earth was at length manifest in his royal person. खुदा का नूर इसके अंदर 10वीं दफा जाहिर हुआ, यानी इमाम हाकम के अंदर, और इमाम हाकम से पहले 9 दफा खुदा का नूर जाहिर हुआ इंसान के अंदर. तो 10 अवतार की बात है कि नहीं? तो ये कोई हिंदुओं की बात तो नहीं. उस जमाने में, इमाम हाकम के जमाने के अंदर, हमारे बाप दादाओं के अंदर से कोई इस्माइली था ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला जो पीर हिंदुस्तान में आए वो तो इमाम मुस्तनसिर बिल्ला के जमाने में पीर सदगुर नूर आए. ये तो उसके पहले की बात है, और वो ये बात किधर की है? कैरो की है. वहाँ एक भी हिंदू नहीं था, न कोई भगवान दास था, न मूलचंद था. और ये इमाम हाकम के फरमान के लिए है कि इमाम हाकम ने खुद को कहा कि मैं 10वीं दफा इस दुनिया के अंदर खुदा का नूर जाहिर हुआ हूँ. मैंने आपके सामने बहुत कुछ कहा, और अगर इजाजत मिले और हमारे अकबर भाई जो आज के मास्टर ऑफ सेरेमनीज हैं, मालूम नहीं बाहर चाय रखी कि नहीं रखी, मगर मैं कहता हूं कि जो अकबर भाई मंजूर करें तो मैं 3 क्वेश्चंस फ्लोर में से जवाब देने को तैयार हूं, जो ये कबूल करते होंगे तो. अकबर भाई आइए इधर. ओके, उन्होंने कबूल किया है. 3 क्वेश्चन. हेलो, अच्छा, उन्होंने कहा 5 क्वेश्चन तक. प्लीज कम हियर. उसमें रिकॉर्ड हो गया. There was a mention of the 10 avatar in one of our Bangi Inans. Why has this mention been removed now? I see. Thank you very much. बंदगी के गिनानों के अंदर, गिनान में इसने कहा कि 10 अवतार का नाम क्यों निकाला गया. हकीकत यह है कि हम जो पहले पढ़ा करते थे बंदगी के गिनान के अंदर, वो पाठ बराबर नहीं था. लेकिन जो आज हम वो पाठ पढ़ते हैं, खत दर्शन की वेल में से 72 नंबर का पाठ है, और वो पाठ इस तरह से है. हे जी दर्शन छे ए जागता आने शोधी लियो गुणवंत अजकल 10 माहे स्वामी आविया अने वरदेवा अनंत. इसमें सबसे निकाला नहीं गया, पढ़ा जाता है. अवतार का लफ्ज इसमें नहीं है, अवतार का लफ्ज नहीं है, मगर ये गिनान का असल बात है. बहुत दफा ऐसा ना, हमारे बहुत प्यार करने वाले भगत होते हैं. आपको मालूम है, बाज आदमी ऐसे होते हैं कि दूर से ही प्यार करते हैं, कोई गले लपट जाते हैं, कोई किस वगैरह करते हैं, कोई भींच के उसको दुख हो जावे इतना पहुंचा देते हैं. तो हमारे बहुत से ऐसे भगत हैं, हर बात के अंदर शाह करीम शाह करीम शाह कर दिया, मौला कह दिया, श्री सलाम शाह का नाम निकाल के करीम शाह कर दिया, और गिनान पे पढ़ते पढ़ते हमको मालूम ही नहीं. अच्छा जी संजा वेला
तमें मत कोई चूको मौलाए छे गुरनी एंधानी। मौला को कहते हैं ये गुड़ की एंधानी है कि तू शाम को आके दुआ पढ़। तो इस तरह से हम लोग बहुत से गिनानों के अंदर हेर फेर कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। पीरों ने जो चीज कही वो एग्जैक्टली रखनी चाहिए। According to us, Hazrat Ali was the first Zahir Imam. Before that, all the Imams were in Batin. So this no avatar, were they in the रूप of Imam or were they in the रूप of Prophet or what रूप they were? अच्छा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। टाइम की वजह से मैंने इसको जरा शॉर्ट किया। हमारे जितने भी ये 10 अवतार थे वो इमामत का नूर था। इन 10 अवतारों के बीच में जो लिंक है, यानी इनकी औलाद जो हुई, उसका नाम है विष्णुपुरी। इस सदरुद्दीन की बनाई हुई। यानी कृष्ण के बाप का नाम क्या था, लड़के का नाम क्या था। तो ये जो विष्णुपुरी के अंदर सितोत्र पात्र हैं, तो वो एग्जैक्टली बाप बेटे नहीं है। क्योंकि फिर सदरुद्दीन ने क्या किया है, वहां तो पता नहीं कितनी सैकड़ों पेड़ियां निकल गई, मगर मशहूर एक एक पेड़ी ले ली। जैसे हजरत रसूल अकरम की जो पेड़ियां हैं, अल्लामा सुहेली नाम के एक थियोलॉजियन हुए, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह से लेके अदनान तक 40 पेड़ियां हैं। 40 पेड़ियां भी मिलती नहीं। फिर उसने ये भी लिखा है कि अदनान से लेके हजरत इब्राहिम तक 40 पेड़ियां हैं, यानी 40 जनरेशन हैं। तो पीर ने ये जो वंशावली लिखी है, जिसको हम विष्णुपुरी कहते हैं, इसके कंप्लीट विष्णुपुरी, जूनी जो दुआ थी हमारी घटपाट की, उसके अंदर कंप्लीट विष्णुपुरी है। तो उसके अंदर ये है कि ये अली अलैहिस्सलाम की एक ही फैमिली चली आती है और ये सब के सब इमाम का नूर थे। अब मोहम्मद का नूर हर जमाने के अंदर रहा। तो पहले सतयुग के अंदर, सारे जमाने के अंदर गुरु ब्रह्मा थे। यानी गुरु ब्रह्मा कोई 17 लाख बरस जीते नहीं रहे, मगर गुरु ब्रह्मा की जो औलाद थी, ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, ब्रह्मा 3, इस तरह से भी चले आए। तो चौथे पहले सतयुग के अंदर गुरु ब्रह्मा थे। विजय त्रेता युग के अंदर गुरु वशिष्ठ जी थे। तीसरे द्वापर युग के अंदर गुरु व्यास जी थे और कल युग के अंदर गुरु नबी मोहम्मद हैं। अभी नबी मोहम्मद का जब हम जिक्र करते हैं, व्यास जी और वशिष्ठ जी और गुरु ब्रह्मा, तो आज नबी मोहम्मद को फिजिकली इस दुनिया से गए हुए 1400 साल हुए, लेकिन हमारे जो पीर है वो गुरु ब्रह्मा की, नबी मोहम्मद मुस्तफा की नूरानी हालत है। अली का नूर इमाम है और मोहम्मद का नूर पीर है। तो हमारे अंदर शाह और पीर की जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो हमारे अली अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी थे पात्र, वो सब इमाम का नूर थे। यस। From what you mentioned, it seems to me that without mentioning Darwin's theory of evolution, your views very much agree with this theory. But I'm at pains to say that does it not conflict with our traditional view that we come from Adam and Bibi Hawa, and because of their nafrmani, he was thrown out into the world, and we are descendants of Adam and सवाल तो आप समझ गए। इस भाईजान का कहना यह है कि भाई एवोल्यूशन की तुमने बात की, मगर हमको तो ये कहा गया कि हम आदम की औलाद से हैं। मैंने अपने इस लेक्चर में कहा कि जो फर्स्ट एमीबा था वो आदम था, और हवा की जो स्टोरी है, आदम और हवा की स्टोरी, उसके अंदर बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आमतौर के ऊपर सब लोग मिस्टीरियस चीजों को समझ नहीं सकते, तो नॉर्मली हम कबूल कर लेते हैं। जैसे कि आज ही मैंने एक दफा ये जिक्र किया कि मैं एक दफा राजकोट में वाज करने के लिए गया,
सिंप्लिसिटी इंसान के माइंड के अंदर जो होती है वो मिस्ट्री तो नहीं समझ सकती। तो मैं वाज करके बैठा, दूसरी दुआ का टाइम हुआ, मुखी साहब ने एक भगत साहब को कहा, भगत साहब दुआ पढ़ो। भगत साहब फौरन उठे, आके मुखी साहब के पास बैठ गए, दुआ पढ़ो अल्लाह मेरे हकमान थो। उस जमाने में हम ऐसा बोलते थे ना, अकनाम पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह, एक तस्वीर पीर शाह की निकाली, हम समझे अभी दुआ शुरू करेंगे, अभी दुआ शुरू करेंगे। जब एक तस्वीर पूरी हो गई, शाह तो दरगाह में कबूल का नूर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह हज़र इमाम अकनाम पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह पीर शाह, 12 तस्बीहें पीर शाह की निकाली। शाह जो दीदार दे के आके बैठ गए। जमात हैरान, मुखी मुझे पूछते हैं मिशनरी साहब देखा? मैंने कहा क्या देखा? बिल्कुल फरमान बरदारी है। कहते क्या ये दुआ है? मैंने कहा हाँ, इमाम सुल्तान शाह का फरमान है, अगर दुआ नहीं आती तो 12 तस्बीहें पीर शाह की निकालो। इस भगत साहब ने जब ही मुखी का फरमान सुना तो मुखी का फरमान है वो शाह का फरमान है, उसने ना नहीं किया, उसने नहीं कहा मेरे को दुआ नहीं आती, क्योंकि इमाम ने फरमाया दुआ नहीं आती तो 12 तस्बीहें निकालो। उसने जमात पे दुआ पढ़ाई, भले टाइम आधा घंटा निकल गया कोई बात नहीं, मगर दुआ पढ़ाई। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन आज मैं टाइम नहीं दे सकता। मैं आपको इतना जरूर बोलता हूँ कि जब हम हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा उसके अंदर कोई गुंथायला हुआ एक चीज मिलती है, पजल मिलता है कि जो आसानी से हल नहीं हो सकता। हमको ये कहा गया कि वो जन्नत में थे, तो जन्नत में से खुदा ने उनको जब नाफरमानी की जन्नत में, तो खुदा ने निकाल दिया, नीचे फेंका। तो हदीसों में है कि हजरत आदम सीलोन में उतरे, यानी यहाँ गिरे, और अम्मा हवा जिद्दा में गिरी, जिद्दा अरेबिया में है। तो भाई ये कैसे गिरे? आज हमको पता लगता है कि स्पेसशिप में से जब आके ये गिरते हैं तो वो एक कैप्सूल होता है, वो समुद्र में गिर जाता है और फिर जाके बोट उनको निकाल के ले आती है। तो हो सकता है कि हजरत आदम और अम्मा हवा कोई दूसरी दुनिया या प्लेनेट में से आए होने, और इनका कैप्सूल आदम का यहाँ गिर गया, अम्मा हवा का वहाँ जिद्दा में गिर गया। हदीस है। अभी कौन से आदम की बात करते हैं? जमीन के ऊपर तो एवोल्यूशन हुई, और ये आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा आसमान से गिरते हैं। आज ये सब्जेक्ट में सॉरी ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन हम दुनिया के अंदर इवॉल्व हुए हैं, मगर जमीन की इस करोड़ों बरसों की लाइफ में पीरों का हिसाब देखूं तो लगभग 8-10 बिलियन बरस से ज्यादा इस दुनिया को हो गए हैं। साइंटिस्ट कहते हैं 3-4 बिलियन हुए हैं, चलो साइंटिस्ट कहें, लेकिन पीरों का हिसाब बहुत लंबा है। इस अरसे के अंदर आप ख्याल करो, जब खुदा ताला फरमाया है, जो उसकी मिसाल हमको एक्सप्लेनेशन नबी ने दी कि वो 120 फीट के आदमी थे, तो वो भी कहाँ से आए थे ना। हमको इस बात के अंदर कुरान और हदीस पढ़ के ऐसा लगता है, जो कि गिनानों में स्पेस के इशारे हैं, स्पेस के इशारे हैं। हो सकता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी दूसरे प्लेनेट में से आए हों और यहाँ आके उन्होंने ड्वेलिंग की, उसमें से हम भी पैदा हुए। और उस जमाने के अंदर जब आदम अलैहिस्सलाम आए होंगे तो यहाँ जो ड्वार्फ और ये मिसिंग लिंक्स वगैरह है, ये भी होती होगी, क्योंकि आज भी दुनिया के अंदर हम बाज जगहों के ऊपर देखते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया के आजू बाजू के अंदर ये जो आइलैंड्स हैं, फिजी आइलैंड्स हैं और दूसरे आइलैंड्स हैं, 2500 आइलैंड्स हैं, उसके अंदर बाज ऐसे लोग हैं कि कभी बैठा होवे तो बिल्कुल बंदर की जैसा लगता है। डोडोमा एरिया के अंदर जो आदमी हैं, बाज ऐसे लोग हैं। तंजानिया के अंदर के जो दूर से कोई जंगली गोरिल्ला जैसे लगते हैं, चिंपैंजी जैसे लगते हैं। तो दुनिया के अंदर आज इस किस्म के थोड़े से रेमेनेंट सैंपल्स रह गए हैं। हो सकता है कि ये आदम जिसको हम अबुल बशर कहते हैं, शायद वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया होवे, लेकिन एवोल्यूशन की थियोरी सच्ची थियोरी है। इंशाल्लाह कभी मौका लगेगा मैं आदम और हवा की बात को मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जी, चौथा क्वेश्चन, 5वां जिसको तैयार रहना है हो जाएगा। इधर नहीं, इसमें रिकॉर्ड करो।
प्लीज इसमें से एक सिलेक्ट करो, नॉट टू. અમો મિશનરીઓ અને જમાતો તમારા ઇલ્મની બહુ જ કદર કરીએ છીએ, અને જ્યારે તમે કોઈ પણ ઇન્સાન અથવા તો કોઈ પણ માણસના ઇલ્મની કદર થતી હોય એ જ્યારે કોઈ વસ્તુ રજૂ કરે અને એવી રીતે તમે આજે અમુક વસ્તુઓ રજૂ કરી, એની અંદર મને એમ લાગે છે કે કદાચ ભવિષ્યની અંદર કોઈ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પેદા ન થાય એટલા માટે, ફક્ત એટલા માટે જ હું એક પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું અને એ જમાતને જરૂર સમજાવજો. હું જ્યાં સુધી સમજ્યો છું અને ત્યાં સુધી કદાચ બનવા જોગ છે કે બીજાઓ પણ આ પ્રમાણે સમજ્યા હશે કદાચ, કે આપણે સાયન્સની અંદર પ્રોગ્રેસ કરવો એ જાણે કે એક શેતાન એટલે દૈત કાલિંગાના તરફ પ્રોગ્રેસ કરવો એવી જાતની કદાચ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય. હું ધારું છું ત્યાં સુધી આ મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ દૂર કરવા માટે આપણને એ સમજાવો કે આપણને સાયન્ટિસ્ટ થવાની પણ જરૂર છે. જેમ ઇસ્માઇલી દરેક ફિલ્ડની અંદર આગળ વધે છે એ પ્રમાણે હું ધારું છું ત્યાં સુધી સાયન્સની અંદર પણ આગળ વધવું જોઈએ, અને સાયન્સ એ કોન્ટ્રાડિક્ટરી નથી પણ એક કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે એમ મારું માનવું છે. જો એમાં કઈ તમે ખુલાસો કરી શકો તો जरूर करो, जरूर करो. सवाल तो बहुत अच्छा है, मगर मेरे सारे लेक्चर में थे स्टार्टिंग से थे. मैंने ये कहा कि कम्युनिज्म जो दैत कालिंगा है वो साइंस के हथियार को यूज करेगा. हमारे किचन के अंदर बहुत सी छुरियां हैं, तो मैं छुरियों से अपना गला नहीं काट रहा. मैं छुरियों से एप्पल काटता हूँ, फ्रूट काटता हूँ, यूज करता हूँ. मगर किसी आदमी, जुनूनी आदमी को चाहिए तो वो छुरी से आपघात भी कर सकता है, दूसरे को भी मार सकता है. मैंने साइंस का तो कोई विरोध न किया. मैंने ये कहा कि दैत कालिंगा साइंस का वेपन यूज करेगा. आप उसको अच्छे तरीके से यूज करो, साइंस के विरुद्ध की तो कोई बात नहीं की. और इधर हमारा मौला भी तो साइंस यूज करेगा, तो साइंस एक सेल्फ कुछ खराब नहीं. दैत कालिंगा कम्युनिज्म साइंस में बहुत तरक्की करेंगे और वो साइंस के हथियार को यूज करेगा. साइंस का हथियार अच्छे तरीके से भी यूज हो सकता है. इधर नॉर्थ अमेरिका में बहुत से लोग हैं जिनकी पॉकेट में रिवॉल्वर रहता है, और यहाँ तो रिवॉल्वर आसानी से मिल जाते हैं. तो क्या हर रिवॉल्वर रखने वाला खराब है? या रिवॉल्वर तो खराब नहीं, दैत कालिंगा यूज करेगा, साइंस खराब नहीं. 4 क्वेश्चन हो गए.